Before we start, let us understand what is third world literature, third world feminism, or first world. First world means, on the one hand, we have Western feminism, and on the second hand, we have थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर और थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म. फेमिनिज्म में भी आप जब बात करते हो, सो वी हैव सर्टेन वे different kinds of feminisms. Feminism that is started from the West, so they have certain way, certain thing about themselves. Or if we look at feminism in a global perspective, so there are still further categories. जो स्टार्ट हुआ था एक ग्लोबल फिनोमिनन के फॉर्म में, जो सोचा जा रहा था कि फेमिनिज्म मतलब ऑल द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर सिस्टर्स इन सफरिंग, सिस्टर्स इन स्ट्रगल. वो नैरेटिव जो स्टार्ट हुई थी, बट व्हेन इट स्टार्टेड गोइंग ऑन, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर एक सब कैटेगरी और डिवाइस हो गई. वहां पे फिर एक कोलोनाइजेशन या कोलोनियलिज्म, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको नजर आने लगता है. Just like West people, they considered us to be inferior. In a similar way, Western feminists, they also did not consider the third world feminism at par. They thought they regarded themselves superior, and then they regarded the third world feminism or the women or the suffering of women to be inferior. अब इस चीज को जब ये मतलब it happens for a length of time, so certain people notice it. Certain people notice that how come a person remaining in Western countries or who has had no experience of the third world nations. Third world nations कौन से होते हैं? जो हम जिस वर्ल्ड में हैं वो, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सारी थर्ड वर्ल्ड नेशंस में ही आती हैं. चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, सब कॉन्टिनेंट हो, या फिर ये एशियन सब कॉन्टिनेंट हो, जितनी भी गल्फ, मिडिल ईस्ट, ये सब किसमें आते हैं? थर्ड वर्ल्ड नेशंस में ही आते हैं. सो एक तरफ तो ये रहा, फिर एक तरफ रहा यूरोपियन और अमेरिकन. दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज सुपीरियर. दिस हैज बीन द प्रोसेस फॉर a length of time, and this can be also felt in feministic studies also. वहां पर भी आपको नजर आता है कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को हर तरीके से कल्चर्ड, फ्री, एजुकेटेड और हर तरीके से एक्सेसिबल माना. And when it comes to the question of women of third world nations, they regarded us to be inferior, dependent, uncultured, uncivilized, and were dependent completely on patriarchy or suffered by the patriarchal pressure. ये सारी चीजें, they started thinking all the women of the world under the same umbrella. उनको एक मोनोलिथ यहाँ पे भी आएगा कि किस तरीके से वेस्टर्न फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने थर्ड वर्ल्ड नेशन की वीमेन को भी एक सही समझना शुरू कर दिया. दे टॉक अबाउट फॉर द कॉज ऑफ वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस, बट दे जनरलाइज द थिंग्स. अब वो जो कंडीशंस यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वो सेम कंडीशंस यहाँ पर नहीं होंगी, ये एक फैक्ट है. इफ दे रिगार्ड द वीमेन ऑफ आवर कंट्री और द वीमेन ऑफ आवर मीन्स दिस कॉन्टिनेंट, or women of African descent, or women of third world nations, particularly Middle East or Islamic countries, तो उनकी कंडीशंस और वेस्टर्न कंडीशंस में उनमें फर्क होगा. सो हाउ कम दे कैन जनरलाइज? जब इसी चीज को लोग नोटिस करना शुरू किया, तो उनमें से ही कुछ फेमिनिस्ट भी निकल करके सामने. ये चंद्रा तलपड़े मोहंती इज वन ऑफ देम. She is a feminist, but she is not the kind of feminism, means feminist, that all the people of the West are. यहाँ पर भी एक selective feminism की बात फिर होती है. Western feminism is different, and then the Western and the feminism from the perspective of Western feminism, वो एक different हो जाती है. They have some notions about themselves, and then they have different notions about the women of third world nations. उन्हीं के कॉज को एक सही से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया कि भाई, इफ यू कॉल योरसेल्फ ट्रू फेमिनिस्ट, सो यू शुड represent the women of third world nations in the true colors. You cannot simply generalize the sufferings of all the women. ऐसा नहीं हो सकता है कि all the women have the same kind of pressure, the same kind of suffering. They, according to the situation, according to the context, according to the geographical
ethnic, religious, their suffering can be different, and then the palliative, something that we do in order to minimize the suffering, वो palliatives भी different होने चाहिए. You cannot simply generalize that the solution that you felt for the women of Western countries can be the same solution for the women of third world nations. हो सकता है कि वहां पर कुछ और कंडीशंस हो और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशंस, मींस पर्टेनिंग टू ऑल कंडीशंस, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इफ यू फील doing something for the women of third world nation, that can be the true meaning of feminism. Otherwise it will remain a selective feminism. So we'll start this essay, long essay of Chandra Talpade Mohanty. Under Western eye, Western refers to Western feminists. Now we have to look at the condition of women of third world nations from the lens of, from the approach of, or from the eyes of, or from the temperament of, from the perspective of Western feminists. अब ये बात है, वेस्टर्न फेमिनिस्ट किस तरीके से यहाँ की लेडीज का या फिर जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस की वीमेन के कॉज को उठाती हैं, वो एक इनको लगा दैट इज फॉल्टी, that needs to be rectified, that needs to be taken into consideration, that needs to be re-evaluated. Simply you cannot generalize the conditions of the women of the world. जिस तरीके से locales different हैं, conditions different हैं, similarly the problems of all the women of the world could be different. If you target the particular problem of the woman or a women, you can simply justify the cause or the concept of feminism. अगर आप एक ही तरीके से सबको जनरलाइज करके एक ही सोल्यूशन दोगे तो सोल्यूशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड. तो फ्रॉम अंडर मतलब क्या है कि अंडर द परव्यू ऑफ वेस्टर्न फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट्स और द अप्रोच of Western feminism or feminist towards third world women. इस तरीके से समझिए कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट थर्ड वर्ल्ड वीमेन को किस लेंस से देखती हैं, किस अप्रोच से देखती हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं, उसको एनालाइज किया गया इस पूरे एसे में. When she has started analyzing the things, she has found Western feminist discourses somewhat faulty. उसमें उन्होंने क्या किया है कि she has quoted 5 texts, particularly बहुत सारे टेक्स्ट वो किए, लेकिन primarily she has analyzed, evaluated 5 texts of Western feminists. The texts were published by Z Press publication. उसने वो टेक्स्ट पब्लिश किए. उन सारे टेक्स्ट में जो दो तरफा आपको फेमिनिज्म दिखती है, सिलेक्टिव फेमिनिज्म दिखती है. They consider themselves in some different colors and then they present the women of Gulf countries, the women of Indian descent, the women of African descent in different perspective. वो दो पर्सपेक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगर हैं तो फिर आपको दो तरह के सोल्यूशन प्रेजेंट करने चाहिए. So this is what we have. Chandra Mohanty Talpade is a feminist scholar, activist and educator in women and gender studies. This is her area of expertise. Under Western eyes is the opening chapter of Feminism under Without Borders. Feminism without borders. This is ये आपको क्या है कॉन्टेक्स्ट के लिए याद रखना चाहिए. मतलब as far as competitive facts are concerned, when you appear in the competition, so some of the facts can be helpful. This is not exclusive essay. This is the opening chapter of Feminism without borders. Without borders मतलब if we consider feminism with borders, borders मतलब feminism of European countries is different, feminism of African countries
is different. Feminism of Gulf countries is different. Feminism of Asian countries is different. अगर डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस होना पॉसिबल है, ऑब्वियस है, तो उसी तरीके से फिर सॉल्यूशन भी होने चाहिए. द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी द सेम. द सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी applied to all sorts of work. In this essay under Western eyes, this is the complete title of the essay: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. This is a complete title. She confronts Western feminists. एक तरफ तो वेस्टर्न फेमिनिस्ट और दूसरी तरफ जो नॉन वेस्टर्न फेमिनिस्ट, आप उसको नॉन वेस्टर्न फेमिनिस्ट में ही सारे को ले लीजिए. मतलब फेमिनिज्म of African descent, feminism of Asian descent, feminism of Gulf countries, जहां पे नॉन यूरोपियन या नॉन वेस्टर्न फेमिनिज्म को आप यहाँ पे कंसिडर करते हो. रिगार्डिंग देयर कैरेक्टराइजेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड विमेन, वन साइड वेस्टर्न फेमिनिस्ट, ऑन द अदर साइड वेस्ट थर्ड वर्ल्ड विमेन. थर्ड वर्ल्ड विमेन को एक ही लेंस से देखना और उनको जनरलाइज कर देना, उनकी प्रॉब्लम्स को जनरलाइज कर देना, उनके कॉजेस को जनरलाइज कर देना, that does not seem justified, because that will not give you the exact picture, and since it will not give you exact picture, it will not lead you to the perfect solution. जो solution आप फेमिनिज्म या इन डिस्कोर्सेस के थ्रू उठाना चाह रहे हो या फिर लाना चाह रहे हो, वो सॉल्यूशंस शायद नहीं आएंगे, उस तरह के सॉल्यूशंस नहीं आएंगे. तो अगर परफेक्ट सोल्यूशन की अगर बात करते हो तो उसी तरह का अप्रोच भी आपका होना चाहिए. ठीक. एज अ मोनोलिथ, मोनोलिथ मतलब क्या है कि व्हेन यू जनरलाइज दैट ऑल द वीमेन, मोनोलिथ का सेंस समझिए कि दे हैव रिगार्डेड ऑल द वीमेन ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज टू हैव द सेम कॉज ऑफ सफरिंग, टू हैव द सेम प्रॉब्लम, एंड एज सच टू बी गिवन अ सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन. हाउ कम इट इज पॉसिबल? आपने सारी जो नॉन वेस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं उन सब की लेडीज की प्रॉब्लम्स एक मान ली, एक तरह की मान ली, उनको जनरलाइज कर दिया विदाउट लुकिंग इनटू द रेशियल मींस रेशियल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस. इन सारी कंसिडरेशंस को बिना सोचे आपने एक जनरलाइज कर दिया कि द प्रॉब्लम ऑफ द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड इज द सेम. हाउ कम इट इज द सेम? इफ यू कंसिडर इट टू बी द सेम, सो योर प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सिंपली गिवन, द सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी गिवन. ये तो वही बात हुई कि आप जितने भी लोगों को आपने देखा बीमार, उनको सोच लिया कि बीमार है सब, अब सबको आपने पैरासिटामोल देने शुरू कर दिया. So same kind of solution cannot be given to all the people without looking into their specific or individual problem. Individual problem related to their geography हो सकती है, economic conditions हो सकती हैं, political conditions हो सकती हैं. तो अगर आप उनको एनालाइज करते हो बेहतर ढंग से तो आप वहां का सर्वे करिए और फिर उन सारी वीमेन के जो कॉजेस को फिर एक एक करके उठाओगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, so that solution can be justified. Otherwise it will remain हाइपोथेटिकल सिचुएशन. जो फॉल्टी रहेगा वो जस्टिफाइड नहीं रहे. द टाइटल रिफर्स टू द assertion that Western feminist scholarship views women from the developing nations. ये है थर्ड वर्ल्ड नेशंस. Women of the developing nations as if they were the uniform group without considering differences in race, class, geographic location or religion. मतलब without looking into these conditions, Western feminists have generalized the causes of all the women of third world nations. ये प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम इसको लगी वो ये है कि सारी जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने थर्ड वर्ल्ड नेशंस की वीमेन के कॉज को एक मान लिया, कि प्रॉब्लम एक मान ली, सबको ये कह दिया कि दे आर सप्रेस्ड बाय द पेट्रियार्कल प्रेशर, they are suppressed by this same problem. Means male जो governance है, that is the sole cause of their problem. या religion is the sole cause of their problem. या political situation is the sole cause of the problem. तो ऐसा तो हो नहीं सकता. कहीं पे हो सकता है religious जो considerations हो वो problem की जड़ हो,
कहीं पे हो सकता है पेट्रियार्की प्रॉब्लम की जड़ हो, कहीं पे हो सकता है एथनिक जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो उन वीमेन की प्रॉब्लम की जड़ हो, कहीं पे पॉवर्टी हो सकता है कि प्रॉब्लम की जड़ हो, कहीं पे कल्चरल बैकवर्डनेस प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है, कहीं पे पेट्रियार्की प्रॉब्लम की जड़ हो सकती है, कहीं पे कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, द प्रॉब्लम ऑफ द वीमेन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज विल डेफिनेटली वेरी, वो डिफर करेंगी, और उसी को अगर आप एनालाइज सही से करते हो तो यू विल गेट टू सम डेफिनेट कंक्लूजन, और सम जो बेहतर सोल्यूशन हो सकता है वो फिर वहां से निकाला जा सकता है। एक जनरलाइज करके आप एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। द वेस्टर्न फेमिनिस्ट व्यू थर्ड वर्ल्ड वीमेन थ्रू द लेंस ऑफ देयर प्रिविलेज। अब वेस्टर्न कंट्रीज में तो प्रिविलेज्ड हैं, द वीमेन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर प्रिविलेज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट। वो जो प्रिविलेज उनको है, द सेम काइंड ऑफ प्रिविलेज कैन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो वो सेम प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन वो अपने लिए सोच रही हैं, वो सारा सेम सॉल्यूशन यहाँ पर कब कैसे अप्लीकेबल हो सकता है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ की प्रॉब्लम्स माना, अपने सॉल्यूशंस को यहाँ पर देने की बात करें कि जो प्रॉब्लम सब सारी दुनिया की वीमेन की एक ही प्रॉब्लम है कि वो दे आर सप्रेस्ड बाय पेट्रियार्की। ये है, सारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से त्रस्त है, और सबका सोल्यूशन यही है कि यू फाइट फॉर द कॉज, यू फाइट फॉर योर ओन कॉज, यू फाइट अगेंस्ट मैन। ये अब ये सोल्यूशन कैसे हो सकता है? वहां पे आपके कुछ कंसिडरेशन हो सकता है कि है ही नहीं माइंड में, मतलब पॉवर्टी अगर नहीं है तो वहां पे यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द अर्निंग ब्रेड एंड बटर। द वीमेन ऑफ गल्फ कंट्री, द वीमेन ऑफ अफ्रीकन कंट्री, द वीमेन ऑफ एशियन कंट्रीज pertaining to certain localities, हो सकता है पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो पहले पॉवर्टी को देखेंगे या फिर मेल डोमिनेशन और कल्चरल डोमिनेशन और पॉलिटिकल डोमिनेशन, इस चीज को देखेंगे? तो अगर आपको उनकी रियल सॉल्यूशन की बात करनी है तो उनकी रियल प्रॉब्लम को जानना होगा। यू कैन नॉट सिंपली जनरलाइज, दिस इज व्हाट हैज बीन देयर फ्रॉम वेस्टर्न फेमिनिस्ट एंड दिस इज व्हाट शी हैज टेकन टू बी अ प्रॉब्लम विद देयर फेमिनिज्म। अब इनको लगा कि यार ये आपकी जो फेमिनिज्म है ये थोड़ी पार्शियल है, थोड़ी सी सिलेक्टिव है, जनरलाइज आप कैसे कर सकते हो? सो इट कैन नॉट बी द मोनोलिथिक, women cannot be, women of all the world means the entire world cannot be monolith, the problem cannot be self same identical, and treat the female population of the third world nation as if they all have the same needs and would require the similar treatment in order to raise their state, raise। ये एक जो जनरलाइज कर दी बात कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस की सारी प्रॉब्लम एक है और एज सच उनको एक तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। इनको ये लगता है, फिर चंद्रा मोहंती तलपड़े को लगता है कि ये दिस इज वेरी फॉल्टी असर्शन, दिस इज वेरी फॉल्टी हाइपोथेसिस। इससे किसी का जो वीमेन का कॉज है उस कॉज को आप एड्रेस कर ही नहीं पा रहे हो। You are going in a wrong direction. You are simply giving a sweeping generalization, sweeping statement, or sweeping decision, or sweeping means identification or evaluation. So this cannot be the thing. आगे फिर देखिए सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब क्या है कि व्हाट द एंटायर ऐसे इज ऑल अबाउट। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी पूरे ऐसे में समझने के लिए। बिफोर यू एंटर इनटू द ऐसे, you can get to know what are the basic things. It is through this essay the writer criticizes the tendency of Western feminists to have a homogeneity. Homogeneity मतलब क्या है? same treatment to all the heterogeneous people. दुनिया कितनी है? heterogeneous है, कैसी है? The problems of the people are as different as the people themselves, as various as the people themselves. इन्होंने क्या मान लिया कि सारी दुनिया की लेडीज की एक प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन उनको दिया जा सकता है, और इस सोल्यूशन से सारा जो प्रॉब्लम्स है विमेन की वो हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू हैव रेज द कॉज ऑफ वीमेन। जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी लेकिन वो यहाँ पे है,
तो वो वही प्रॉब्लम है। तो होमोजेनिटी मतलब क्या है कि टू ट्रीटिंग समथिंग इन अ सेम वे, एक यार्ड स्टिक, सिमिलर यार्ड स्टिक से आपने सबको एक तरीके से ही इवेल्युएट कर लिया। एंड यूनिवर्सैलिटी अमंग थर्ड वर्ल्ड वीमेन, उनको ये लगा थर्ड वर्ल्ड वीमेन की एक प्रॉब्लम है, एंड अगर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दो तो इट विल बी द एंड ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस। ये है मेन प्रॉब्लम की जड़, जिसकी वजह से ये ऐसे लिखा गया। शी अटैक्स द राइटर्स, ये कौन से राइटर्स हैं? वीमेन राइटर्स, फीमेल राइटर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज या फेमिनिस्ट, वेस्टर्न फेमिनिस्ट, who characterize women as a singular group on the basis of shared oppression. Shared oppression का मतलब, they western feminists regard the problem, the cause of the problem of third world nation as the suppression, oppression. All the women of third world nations are oppressed, suppressed under patriarchy या फिर कोई और प्रॉब्लम। सब लोगों की, सारी जो लेडीज हैं इधर की थर्ड वर्ल्ड नेशन की, सबकी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है भाई? विदाउट कंसिडरिंग द जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी। ना तो आपने जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देखा, ना ही आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी, ना ही अदर जो फेसेट्स हो सकते हैं सोसाइटी के, लाइफ के, उनको आपने इवेलुएट किया और आपने एक जनरलाइज चीजों को कर दिया। दिस इज वेरी फॉल्टी। मोहंती डिटेक्ट्स दैट सो कॉल्ड कॉलोनियलिस्ट मूव, और ये क्या है? कॉलोनियलिस्ट मूव उसने उनको कहा है कि you're generalizing the problems of all the third world women is nothing but a colonialist move। और कॉलोनियलिस्ट मूव का मतलब यही है कि यू आर अंडर डेवलप्ड, यू आर अनएजुकेटेड, यू आर प्रेशराइज्ड, यू आर सप्रेस्ड, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द solution, will give you the solution, will give you the solution, the solution we provide will be your palliative। वो कैसे हो सकता है? इन ए नंबर ऑफ वेस्टर्न रेडिकल एंड लिबरल फेमिनिस्ट राइटिंग्स, जो राइटिंग्स का यहाँ पे अभी जिक्र आएगा। अकॉर्डिंगली marks out the analytical presupposition in those texts which led to the production of the third world women as a singular and monolithic subject। मतलब देर आर सर्टेन टेक्स्ट, विल टॉक अबाउट दोस टेक्स्ट। उन सारे टेक्स्ट में ये बात कह दी गई कि द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस रिक्वायर दिस सॉल्यूशन बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स इज द सेम। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस वन थिंग इज द प्रॉब्लम, एंड देन दिस कुड बी द सॉल्यूशन। ये सारे टेक्स्ट में, और उन सारे टेक्स्ट में ये प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस रिक्वायर एजुकेशन, रिक्वायर सपोर्ट, रिक्वायर freedom from the male pressure, require freedom from the ethnic pressure, जो रिलीजियस प्रेशर है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, उन सब से, भले ही वो प्रॉब्लम उस जगह की हो या फिर ना हो। एक जगह जहां पर उनकी रियल प्रॉब्लम है पॉवर्टी, लेकिन आपने कह दिया कि आपकी प्रॉब्लम है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। अब आप क्या करो, तो जितने भी मेल हैं आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में, उनसे लड़ाई करना शुरू कर दो, उनको मारना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। प्रॉब्लम क्या थी? पॉवर्टी। सोल्यूशन क्या दिया? कि आदमी को मारना शुरू कर दो। अब ये क्या सोल्यूशन हुआ भाई? इससे आप क्या कर रहे हो? और रिफ्ट पैदा कर रहे हो। शी हैज डिस्कस्ड कि आपने क्या किया, ऐसे एक बाइनरी प्रेजेंट करके कि विमेन, ऑल द विमेन ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव द सेम प्रॉब्लम, दे आर सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड बाय द पेट्रियार्की, men governing society है। आप क्या करो? You start raising your voice against all the suppression done by the men, you start forming against men। एक ग्रुप तैयार कर लो, men के अगेंस्ट आ जाओ, जहां पे men दिखे उसको भगा दो, मार दो। अब इस तरीके से क्या होगा कि आप उस सोसाइटी को और डिवाइड कर रहे हो। जो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके एक नई प्रॉब्लम और वहां पे बना दी। बजाय उस जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, जेन्युइन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बजाय आपने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, एक रिफ्ट पैदा कर दिया। मैन वुमन इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट पैदा कर दिया, उस चीज को जनरलाइज करके। हो सकता है कई जगह केसेस हो सकता है कि ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द मींस सप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वीमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम
एंड दिस प्रॉब्लम इज द कॉमन प्रॉब्लम अराउंड द ग्लोब, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड नेशन। तो ये कैसे हो सकता है? इसी चीज को यहाँ पर उन्होंने उठाया। वेस्टर्न फेमिनिस्ट की ये एजम्पशंस हैं, तो इन एजम्पशंस को बेस बना करके उन्होंने बात कही है कि ये वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन रिक्वायर दिस थिंग। क्या है? थर्ड वर्ल्ड, certain assumptions of privilege and ethnocentric universality, of inadequate self-consciousness about the effect of Western scholarship on the third world in the context of the world system dominated by the West। इन assumptions के साथ जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट्स हैं, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड नेशन के साथ एक सिलेक्टिव फेमिनिज्म को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। She explains that broad assumptions are made about women of the third world, or what is widely considered as the underdeveloped nations of the world. She writes about the 5 specific ways in which women as a category of analysis appear in Western feminist texts, which include, she has analyzed 5 texts of Western feminists। उन सारे 5 टेक्स्ट में से ये बात निकल के आई है कि ऑन दिस बेसिस दे हैव जनरलाइज्ड द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड। Women of the third world nations are the victims of male violence। ये assumptions, मतलब दुनिया जो नॉन वेस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं, उनमें सारी जो विमेन है दे आर द विक्टिम्स ऑफ मेल वायलेंस। एक assumption उन्होंने ये कर दी, इवन विदाउट लुकिंग इनटू द रियल स्टोरी, रियल प्रॉब्लम। क्या है? यूनिवर्सल डिपेंडेंस। ऑल द विमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन other like male men, यूनिवर्सली डिपेंडेंट, मतलब सारी जितनी भी कंट्रीज है, एशियन, अफ्रीकन और ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज, इनकी जो महिलाएं हैं सब डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंस है ही नहीं, सारी की सारी डिपेंडेंट है। तो ये जनरलाइज नहीं है तो और क्या है? फिर क्या है? दे आर द विक्टिम्स ऑफ कॉलोनियल प्रोसेस। और क्या कहा है कि जितने भी कॉलोनियल प्रैक्टिसेस रही हैं, कॉलोनियल रूल रहा है, that has been the main cause of the problem of the women of third world nations। फिर और क्या कहा है कि they are the victims of economic development, since they are underdeveloped countries, so women have suffered more। Countries means all the people of the nations have suffered, but women have suffered more since they are not economically developed। That's why they have suffered, they have been in a continuous state of suffering because of the lack of development, economic development। ये जनरलाइज किया। और क्या किया? विक्टिम्स ऑफ इस्लामिक कोड, कुछ जगह रिलीजन को टारगेट करके कि यहाँ की जो विमेन है दे आर सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो ऑर्थोडॉक्सी है वो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ वीमेन। अब ये 5 बुक्स में 5 तरह की इन्होंने ये कंक्लूजन्स ड्रॉन किए। दीज आर 5 एविडेंसेस। जैसे कि फर्स्ट वन, फ्रैन हॉस्किन, इनकी जो बुक थी क्या थी? वो स्टॉप फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। इस बुक में शी वॉज ए एक्टिविस्ट, देन शी हैज इन दिस बुक शी हैज generalize that women of third world nations are victims of particularly African women। कि जितनी भी अफ्रीकन वीमेन हैं उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि दे फेस जेनाइटल म्यूटिलेशन, विक्टिम्स ऑफ मेल वायलेंस। इट इज नॉट सिंपली पैट्रियार्की, इट इज इन फैक्ट मेल ऑफ दिस प्लेसेस हैव विक्टिमाइज्ड द वीमेन। और विक्टिमाइज में ऐसा नहीं, अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो जेनाइटल म्यूटिलेशन मतलब द वीमेन ऑफ दीज कंट्रीज, वेरी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, द वीमेन हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द ऑर्गन्स, मींस देयर ऑर्गन्स हैव बीन म्यूटिलेटेड, डिस्ट्रॉयड और मींस मैनिपुलेटेड। उनको उन्होंने मतलब सीजर करा दिया गया जेनाइटल ऑर्गन्स में, या फिर उनको रिमूव करा दिया गया ऑपरेशन से। मतलब दिस इज व्हाट शी हैज ड्रॉन एज ए कंक्लूजन कि ऑल द वीमेन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज फेस और हैव सफर्ड द वायलेंस ऑन द पार्ट ऑफ मेल। दिस इज द मेन कॉज ऑफ देयर सफरिंग। दूसरी बुक है इंपॉर्टेंट, वेवरली लिंडसे। ये बुक है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड वर्ल्ड वीमेन, द इंपैक्ट ऑफ रेस, सेक्स एंड क्लास। यहाँ पे विक्टिम्स, इसमें जो कंक्लूजन था, इस पूरी बुक में कंक्लूजन ये था कि विक्टिम्स ऑफ मेल वायलेंस,
जो भी 5 कंक्लूजन थे, पहला कंक्लूजन इस बुक से है। दूसरा कंक्लूजन, इसे वेवरली लिंडसे ने क्या कहा कि ऑल द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस आर द विक्टिम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। किस तरीके से वहां की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स हैं थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, और किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज इस तरीके से बनाई गई हैं कि वहां पर फीमेल और वीमेन वीमेन रिमेन एट द बैक सीट, चाह करके भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगी। ऐसी पॉलिसीज डिवाइस की गई हैं उन नेशंस में कि सारा जो मतलब फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उन सारे फाइनेंशियल मैटर्स में सारा डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका है? मेन का है। They remain on a second place. They are deprived of the economic freedom which they are expected to have, and this is what has led to their downfall. This is what they has led to their tragedy. This is what has led to their suppression, oppression, or this backward state. सब बैकवर्ड है, क्यों परेशान है, क्या है ऑपरेशन? क्योंकि वो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट जस्टिफाइड। उन्होंने ये एक जनरलाइजेशन दी। तीसरी ने क्यूट्रीफेलिस ने क्या है, वीमेन ऑफ अफ्रीका, द बुक ऑफ हर्स इज वीमेन ऑफ अफ्रीका रूट्स ऑफ ऑपरेशन, women of Africa and what are the causes of their oppression, why the women of Africa are suppressed always। उन्होंने क्या जनरलाइज किया? विक्टिम्स ऑफ द कॉलोनियल प्रोसेस। जो कॉलोनियलिज्म का पीरियड था, colonial period has aggravated their problem। वहां पे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, colonial process was the main problem, as if the women of that place did not have any other problem at all। तो ये बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को, जो रियल कॉन्टेक्स्ट हैं उनको ध्यान में रख करके एक जनरलाइज कर दी गई। फिर फोर्थ है जूलियट मिन्सेस, इनकी बुक थी द हाउस ऑफ ओबीडियंस। इन्होंने यहाँ पे वीमेन इन अरब सोसाइटी, जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज की वीमेन को लेकर के उन्होंने एक जनरलाइजेशन दे दी। दे आर द विक्टिम ऑफ अरब फैमिलियल सिस्टम। जो पर्टिकुलर डोमेस्टिक सिस्टम है, एक फैमिलियल फैब्रिक है, जो फैमिली फैब्रिक है, वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि वीमेन आर ऑलवेज विक्टिमाइज्ड, वीमेन ऑलवेज रिमेन एट द बैक सीट, वीमेन ऑलवेज रिमेन underdeveloped, women always remain victimized। ये एक जनरलाइज वहां पर उन्होंने कर दिया गया। फिफ्थ बुक है पैट्रिशिया जेफरीज, फ्रॉक्स इन द वेल, इंडियन वीमेन इन पर्दा। यहाँ पे इन बुक्स में, इस बुक में क्या है कि जो बुर्का या पर्दा, वेल, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वीमेन ऑफ एशियन कंट्रीज, जैसे वीमेन ऑफ पाकिस्तान, वीमेन ऑफ Afghanistan, women of India, Muslim women particularly, they are victimized because of this religious practice that they have to wear burqa, they have to wear veil, and then as such they have been always victimized। ये इन्होंने एक यहाँ पे जनरलाइज ऐसे कर दिया। Victims of the Islamic code, Islamic code मतलब this has been in their religious practices and then this has been deliberately और फोर्सफुली इम्पोज्ड। वो उन्होंने धर्म का नाम लेकर के इम्पोज कर रखा है कि यू विल हैव टू वेयर दिस बुर्का और वेल, एंड इन्होंने उसको फिर क्या कह दिया कि दे हैव ड्रॉन अ कंक्लूजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वुमेन दे लाइक वेयरिंग बुर्का देमसेल्व्स और नॉट। ये कुछ मतलब नहीं करता इनके लिए। ये है कि सिंस ऑल द वुमेन, मुस्लिम वुमेन, दे आर वेयरिंग बुर्का बिकॉज द रिलीजन हैज फोर्स्ड देम टू वेयर इट, religious practices have forced them to wear it। ये एक तो generalized assumption है, this is assumption, this is not the entire reality, it could be somewhere but it is not the only reality, this is not the only cause of their being victimized। so these are the 5 texts जो उन्होंने यहाँ पर एनालाइज किए हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऐसे को कंस्ट्रक्ट किया है, उनमें इस 5 टेक्स्ट का एनालिसिस है। अब मेन आइडियाज ऑफ द एसेस, जो एक एक बुक में क्या आइडियाज थे और क्या इन्होंने काउंटर अटैक किया। यू विल गेट टू नो व्हाट आर द मेन आइडियाज इन ईच बुक एंड हाउ शी हैज काउंटर्ड, हाउ शी हैज गिवन अ रिप्लाई। इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
उन विमेन जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट थी, उनका उस एक बुक से क्या जनरलाइजेशन, उन्होंने क्या क्या एज्यूम किया, क्या उनके एजम्पशंस है, और क्या फिर ये चंद्रा तलपड़े मोहंती का रिप्लाई क्या है, एक एक करके आपको इसमें मिल जाएगा। पहला तो यही था कि वो एक जनरलाइज फॉर्म में क्या है कि वेस्टर्न वीमेन हैव गिवन अ वर्डिक्ट दैट वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन आर मोनोलिथ, दे आर victims of the shared oppression. The problems of all the women of third world nation are the same, and as such they require the same solution. राइटर का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि women are not monolith. Monolith मतलब क्या है कि they are not a collective group having the same kind of problem, having the same kind of, could be given the same kind of solution. Women of third world nations are as various as their geographical condition. The problem of the women of India, and then the problem of women of Pakistan, or the problem of women of Afghanistan, or the problem of women of Egypt, or the women of Cairo, means all these women, they may have different problems, and as such they require different solutions, contextual solutions rather than the similar kind of solution. Only first of all, you have to go to the place, you need to evaluate the exact problem, exact root of the problem, and then you can suggest some solution. You cannot simply remain in your chambers, in your countries, and then have a generalized sort of assumption. ऐसा थोड़ी आपने अपने घर में बैठ करके यहाँ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपने जो पिक्चर किसी की सामने दिखाई जा रही है उसको आपने फाइनल मान करके और आपने फिर उसको आगे पोस्ट कर दिया। ये वही है कि आधी अधूरी पिक्चर, आधा अधूरा डायलॉग किसी का या फिर स्टेटमेंट आपके सामने आया, आपने उसको बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के जाने बगैर, इवेल्युएट करे बगैर आगे फॉरवर्ड कर दिया। जिस तरीके से सारी र्यूमर फैलती हैं सोशल मीडिया पे, उसमें एक रीजन यही होता है कि यू हैव गॉट द क्लिप विदाउट इट्स कॉन्टेक्स्ट। पूरी क्लिप नहीं है आपके सामने, वो एक छोटा सा पार्ट है उस क्लिप का, वो आपको जो आप सोचना चाह रहे हो, जो आप सुनना चाह रहे हो, उसको वो सेटिस्फाई करता है। आपको लगा, आपने एक अजम्पशन बनाई कि हाँ ये ऐसा है, उसी क्लिप को फिर आगे आपने शेयर कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, एंड दिस इज हाउ इट हैज र्यूमर्ड इटसेल्फ, और पूरे फैल गया फिर वो, और उस पर्सन के बारे में या उस जो एग्जाम्पल के बारे में लोगों में अजीब सी भ्रांति फैल गई। यही यहाँ पे हो रहा। उन्होंने जो इमेज सामने आई, उनको ये लगा कि द मुस्लिम वीमेन्स आर वेयरिंग बुर्का, सो दे आर प्रेशराइज्ड। उन्होंने देख करके ये एज्यूम कर लिया कि यार ये तो फ्रीडम नहीं थी, इनको गर्मी में भी पहनना पड़ रहा है, यानी कि इनको मजबूर किया जा रहा है। तो ये हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो, लेकिन हर जगह की तो प्रॉब्लम ये सेम नहीं होगी। हो सकता है कि दे themselves like to wear this particular dress. How come you can decide that this is the problem? How come you can decide remaining in your country that this is the cause of the problem of this particular lady? हो सकता है उसके घर की कुछ और कंडीशन हो, उसकी ये प्रॉब्लम ही ना हो, उसके आज तक उसने सोचा भी ना हो कि ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी कुछ और प्रॉब्लम हो। आपने उस प्रॉब्लम के बजाय क्या सोचा कि ये वेयरिंग बुर्का इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ हर बीइंग विक्टिमाइज्ड, इसको बुर्के से आजादी दिला दो, फेमिनिज्म हो गई, फेमिनिस्टिक जस्टिफिकेशन हो गया। तो जो रियल प्रॉब्लम है उसकी बात करो, वो आपको वहां पे जाकर के पता चलेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस की एथनिक, रिलीजियस, रेशियल और कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सारी कंडीशंस को इवेल्युएट करने से ही मिलेगा। ठीक, तो द ऑथर क्रिटिसाइजेस द ओवर जनरलाइजेशन ऑफ वीमेन व्हिच डैमेज द सॉलिडारिटी और एंड द यूनिटी अमंग वीमेन एंड डिवाइड्स देम इनटू टू ग्रुप्स। अब क्या हुआ, पूरे दुनिया के दो ग्रुप बन गए हैं, वेस्टर्न फेमिनिस्ट ऑन द वन हैंड, थर्ड वर्ल्ड वीमेन ऑन द अदर। वेस्टर्न फेमिनिस्ट आर कल्चर्ड, फ्री, accessible, and what we can say civilized, and have access to their to their femininity, access to the political scenario. They have everything before them.
सिंस दे हैव फॉट फॉर देयर कॉजेज। और एक तरफ क्या है कि ये अंडर डेवलप्ड, अनकल्चर्ड, इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड एंड बार्बरस काइंड ऑफ वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन। अब वो डिसाइड करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और ये सोल्यूशन है। ये किस तरीके से, जैसे कॉलोनियल पीरियड में हुआ वैसे यहाँ पे हो रहा। सो ये फेमिनिज्म कैसे हुई फिर? ये सिंगल एक सेल्फ सेम फेमिनिज्म कैसी हुई? ये तो सिलेक्टिव फेमिनिज्म हुई फिर। आपने अपने मन से ही सोच लिया कि मेरी प्रॉब्लम ये है और ये सोल्यूशन है। आपने मेरी शक्ल देख के लग गया कि तुम्हें ये बीमारी है, लो ये खा लो, भले ही मेरी प्रॉब्लम कुछ और हो या ना हो, या मुझे कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन फिर आपको लग गया कि हाँ ये दवाई खाओ, जरूरी है। क्योंकि हम सारी दुनिया की जो औरतें हैं वो सब क्या है? वी आर सिस्टर्स इन सफरिंग, एंड एज सच वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन, ऑल दिस सप्रेशन। इस सबसे बाहर निकलने की जरूरत है हमें। ठीक। सो द ऑथर क्रिटिसाइज द ओवर जनरलाइजेशन ऑफ वीमेन व्हिच डैमेजेस द सॉलिडारिटी एंड द यूनिटी अमंग वीमेन एंड डिवाइड्स देम इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप बीइंग वेस्टर्न वीमेन। पहला ग्रुप क्या है? वेस्टर्न वीमेन, who are universally liberated, enjoy equality, have control over their body and sexuality, and then they are superior। एक तरफ तो ये रहा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, ये सब क्या रही? वेस्टर्न फेमिनिस्ट। अदर ग्रुप, द अदर ग्रुप बीइंग यूनिवर्सली victimized, sexually battered, craving for some kind of salvation, ये थर्ड वर्ल्ड नेशन। ये दिस इज व्हाट दे हैव प्रेजेंटेड, this is how they have presented, this image is the image of third world women। तो ये फिर एक सिमिलर सेल्फ सेम फेमिनिज्म कहाँ रह गई फिर? इसी वजह से जब आप आगे सेकंड वेव फेमिनिज्म या थर्ड वेव फेमिनिज्म के बाद की बात देखते हो तो उसमें फिर ब्लैक फेमिनिज्म अलग आ जाती है, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म अलग आ जाती है। बिकॉज द वेस्टर्न फेमिनिस्ट दे हैव लुक्ड अपॉन अस with a prejudiced mind, with a prejudiced lens। जो उन्होंने सोच लिया उससे वो हमें इवेलुएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी उन विमेन के माइंड में भी वो क्या है, जो कॉलोनियल एक टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट कहीं पे उनका भी अभी भी उनके उसमें है, और उसी टेम्परामेंट से यहाँ पे इवेलुएट किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है। Some Western feminist scholars tend to group all the women from the third world or developing nations and treat them as monolith, as if they all have the same needs regardless of geographical location, race, class, religion, or ethnicity। She demonstrates themes that define women of the third world as archetype victims। सब क्या है कि सारी वीमेन हैं वो आर्कीटाइप या आर्कीटाइपल विक्टिम्स हैं। सदियों से ऐसे ही उनके साथ अत्याचार होता चला आ रहा है, सदियों से एक ही तरह का वो टॉर्चर झेल रही हैं, सदियों से एक ही तरह का कॉज है जो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, सदियों से एक ही तरह की जो एक फैब्रिक है जिसमें वो उलझी पड़ी है, सदियों से एक ही तरह का मैकेनिज्म है जिससे वो आज तक बाहर नहीं आ पाई। तो एक आर्कीटाइपल विक्टिम, और वो हमेशा विक्टिमाइज्ड ही है, भले ही वो असलियत में है या नहीं है, लेकिन सिंस दे आर वीमेन सो दे आर विक्टिमाइज्ड, सिंस दे आर वीमेन so they are not liberated, since they are women so they are not free, since they are women so they will have to remain illiterate, underdeveloped, uncultured, uncivilized, women of our nations। ये क्या है? एक अजीब सी एक नैरेटिव प्रेजेंट की गई है, सो दैट इन यहाँ की लेडीज को यही लगना शुरू हो जाए। ये इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक जब ये बात कहते चले जाओगे, सो द वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन विल स्टार्ट देमसेल्फ थिंकिंग द सेम वे दे वांट अस टू थिंक। जैसा वो हमसे सोचने के लिए सोच रही हैं, मतलब चाह रही हैं, वैसा अब हमने सोचना शुरू कर दिया है। हमने भी अपने आप को मान लिया है कि हाँ हम तो हमेशा से ही विक्टिमाइज्ड हैं और परेशान हैं और अनपढ़ हैं और ये है और वो है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऐसा सोचने के लिए चाह, और हमने सोचना शुरू कर दिया। बिकॉज दिस नैरेटिव हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। दिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस of the creation of this essay। She feels that this kind of presentation freezes women into socio-political powerless position। अब ये उसका व्यू पॉइंट है, इस ऑथर का व्यू पॉइंट है कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि दे आर ऑलवेज विक्टिमाइज्ड, तो फिर क्या होगा? बाइनरी क्रिएट हो जाएगी, ऑन द वन हैंड विमेन, ऑन द अदर हैंड मैन। अब ये एक सोशियो पॉलिटिकल, एक पावरलेस और पावरफुल, इन दोनों का डिवाइड शुरू हो जाएगा। अब क्या लगना शुरू हो जाएगा? जो वीमेन देखते ही आपको क्या याद आएगी कि दे आर पावरलेस,
दे आर डिफेंसलेस। मैन को देखते ही लग जाएगा ये ऑपरेसर है। ये उसी तरह का हो जाएगा जैसे कॉलोनाइजेशन के पीरियड में एक तरफ कॉलोनाइज्ड एक तरफ कॉलोनाइजर। अब यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। मैन को देखते लगने लग जाएगा कि ये जो है वो ऑपरेशन है। वी आर विक्टिम्स, ही इज ऑपरेसर। वी आर विक्टिम्स, ही इज बुचर। अब ये क्या है, दिस विल डिवाइड द सोसाइटी, दिस विल नॉट लीड टू एनी सॉल्यूशन, रादर दिस विल क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन टू पोल्स ऑफ सोसाइटी, men and women, powerless position in man, and make them remain a fixed place। एक सेल्फ सेम तरह की उनकी पोजीशन बन के रह जाएगी, हमेशा वो विक्टिम्स ही रहेंगी, विक्टिम्स ही बनी रहेंगी। दिस टोटलाइजेशन एंड द डुअलिज्म मेक्स women to fall a prey to the perpetrators। perpetrators कौन हुए? men। they are victims and then men are perpetrators, colonizer, oppressor, butcher। It becomes an impediment to realize the feminist vision and hinders the pursuit of gender justice and equality। कि अगर ऐसा है तो फिर ये कभी भी आप जो सॉल्यूशन एक आइडियल सोसाइटी की बात करना चाह रहे हो जहां पर वीमेन एंड मेन दे आर इक्वली ट्रीटेड, जहां पे एक इक्वालिटी इक्विटी का सेंस होना चाहिए, वो कभी आएगा नहीं। क्योंकि आप हमेशा ही अपने आप को विक्टिम की तरह देखते रहोगे, दूसरे को ऑपरेसर की तरह देखते रहोगे, जो रियल कॉजेज हैं उनकी तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। The assumptions of women as a coherent group with identical interests and desires regardless of class, ethnic or racial location or contradictions implies a notion of gender or sexual difference। If this assumption works, if we start thinking or if we start propagating a sense in the society that women are always victimized, have been victimized, and men has been the source of their torture। So, क्या होगा, एक सोसाइटी में एक सेक्सुअल डिफरेंसेस हो जाएंगे। सेक्सुअल डिफरेंस मतलब मेल वर्सेस फीमेल, मैन वर्सेस वुमन। वुमन जब मैन को देखते ही फिर माइंड में ये आएगी कि ही इज आवर ऑपरेसर एंड एज सच वी हैव टू अटैक दिस पर्सन। ऑन द अदर हैंड मैन विल आल्सो थिंक सिमिलर वे। तो ये क्या होगा, ये व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, किस तरह की सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं फिर हम, अगर इस तरह का सोच मान के चलते हैं, which can be applied universally and cross culturally। This proves to be problematic because the scholars get it wrong when they try to apply the same method of help to all the third world women। अगर एक ही तरह की प्रॉब्लम आप सब लोगों की समझना शुरू कर दोगे तो एक ही तरह का सोल्यूशन आप सजेस्ट करने की कोशिश करोगे। एक ही तरह का सोल्यूशन एक हेट्रोजेनस ग्रुप के साथ कैसे अप्लीकेबल हो सकता है? जैसे एक हॉस्पिटल में आए हुए सारे मरीजों के एक ही तरह की दवाई नहीं दी जा सकती, उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, उनकी बीमारी की हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर जो असली में डॉक्टर होता है वो क्या है कि पूरी बीमारी की पूरी हिस्ट्री को देखता है, तब वो कहीं एक कंक्लूजन डायग्नोस करवाता है। अब आपने ना डायग्नोस किया ना ही कुछ हिस्ट्री उसकी बीमारी की देखी, एंड देन बाय लुकिंग एट द फेस डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम्हें तो ये बीमारी है, तुम्हें तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन ही नहीं है इनफैक्ट। तो क्या होगा, जो बीमार आदमी जो एक नॉमिनल या फिर एक नॉर्मल सा फीवर ओवर था, अब वो उसको एक समझना शुरू कर गया कि मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है और ये मतलब आई विल नॉट बी क्योर्ड एनी मोर, एंड देन दिस इलनेस विल रिमेन विद मी टिल माई डेथ। तो फिर वो मौत के बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर वो क्या अपसेस होने लगता है। उस विक्टिमाइज्ड स्टेटस वाली जो नैरेटिव है उसका भी हाल यही है। इफ वी स्टार्ट promoting this idea that all the women of third world nations are victimized by the male patriarchy, अब थोड़ी दिन बाद क्या होगा कि they will start themselves feeling so, और फिर वो विक्टिमाइज मतलब एक विक्टिम की तरह अपने आप को ट्रीट करना शुरू कर देंगी, और फिर जो एक प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी हो सकती थी, एक बेहतर सोसाइटी की तरफ जो सोसाइटी जा सकती थी, वो फिर नहीं जाएगी। आपने रिफ्ट पैदा कर दिया। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रीट all the women to have the same problem and give the same kind of solution without evaluating their root cause, without looking into the real problem। Yeah, this proves the problematic because the scholars get it wrong when they try to apply the same method of help to all the third world women।
The needs and priorities might be different from each other and different from the conclusions drawn by Western scholars. Conclusions, we have the Western scholars have drawn some conclusions. That these conclusions cannot necessarily be applied to all sorts of places, all sorts of women. वो सिर्फ conclusions है, conclusions are drawn on the basis of assumptions, assumed conclusions है. They are hypothetical, they are not proven, they have not been tested. Mohanty states that this problem occurs when any kind of discourse sets the author up as yardstick by which the measure everything else. अब ये क्या है कि एक आपने पैमाना सेट कर लिया, उस पैमाने से हर किसी को एक सही आप इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो. तो ये क्या होगा, ये सोसाइटी की तरफ एक बेहतर आइडियल सोसाइटी की तरफ नहीं. Monty finds this to be problematic because creating a group to conduct analysis based on a faulty premises will lead inaccurate results. अगर आपने आपका जो मेथड है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का मेथड ही है, अगर डायग्नोस सही से नहीं हुआ तो आप क्या उसका सोल्यूशन, क्या उसका क्योर दोगे? क्योर भी फिर क्या होगा, फॉल्टी ही होगा. अगर डायग्नोस सही नहीं तो फिर क्योर भी फॉल्टी ही होगा, डेफिनेटली. When that happens, Western feminists organize, target what they see as the problems that third world women face, which turn out not to be the highest concern to the third world feminist. अब यानी कि जो उन्होंने प्रॉब्लम हमारे लिए सेट की है कि हमारी प्रॉब्लम ये है, हमने आज तक हो सकता है उन प्रॉब्लम की तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन उन्होंने बार बार कह दिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है. अब थोड़े दिन बाद हमें लगना शुरू हो गया कि हाँ यही प्रॉब्लम है हमारी, इसकी दवाई दो. जैसे डॉक्टर ने कह दिया, बार बार कह दिया, 3-4 विजिट्स में आपने कह दिया कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज उसको पता ही नहीं, डायग्नोस गलत किया और ये प्रॉब्लम है. अब उसने उसी तरह की दवाई देना शुरू की. अब हमने भी मानना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं. डॉक्टर साहब क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि हमसे ज्यादा जानते हैं. यही यहाँ पे हो रहा है. थर्ड वर्ल्ड वीमेन को लगता है कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट जो हैं वो दे आर कल्चर्ड, दे आर एक्सेसिबल एंड देन दे आर फ्री, दे आर पॉलिश, दे आर रिफाइंड, एजुकेटेड, सब कुछ है, तो दे नो बेटर, व्हाट दे हैव सजेस्टेड इज ट्रू. They have started regarding it to be true and as such started receiving the solution that they have given. और उस प्रोसेस में क्या है कि और उनकी स्थिति बद से बदतर हो, ये बजाय हेल्प के वो प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाती है. तो ये कंसर्न है इस राइटर की. शी बिलीव्स दैट in their attempt to help third world women, Western feminists tend to focus on issues such as Muslim women wearing veils. ये प्रॉब्लम एनालाइज कर दी गई थर्ड वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने. एक प्रॉब्लम क्या है, मुस्लिम वीमेन वेयरिंग वेल्स, women experiencing physical abuse at the hands of men, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जनरलाइज कर देंगे. ये कुछ हो सकता है कुछ विमेन की प्रॉब्लम रही हो, कुछ प्लेसेस की प्रॉब्लम रही हो. एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम पूरे उस ह्यूमन रेस के लिए तो अप्लाई नहीं की जा सकती. ये उस पूरे कॉन्टिनेंट की जो वीमेन है उनकी प्रॉब्लम को तो नहीं कहा जा सकता. मे बी some women faced this torture, genital mutilation, they must have faced it. But this could not be, or this cannot be the problem of all the women remaining in that area or that locality or continent. ये कैसे हो सकता है? So the third world women may have many hurdles to overcome, but their priorities are often more immediate necessities, such as access to adequate food, water and education. हो सकता है कि उन लेडीज की प्रॉब्लम ये रही हो. आपने कह दिया कि प्रॉब्लम तो कुछ और है, ये रियल प्रॉब्लम थी, आपने कुछ और प्रॉब्लम जो थी भी नहीं बना के प्रेजेंट कर दिया. वियरिंग वेल सपोज, वो मेन प्रॉब्लम है नहीं. उन्होंने दे डिड नॉट एवर थिंक अबाउट इट एज अ प्रॉब्लम. देयर प्रॉब्लम वाज एडिक्वेट फूड, हाइजीनिक पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, एक्सेस टू वाटर, फ्री एजुकेशन. ये हो सकता है कि उनकी रियल कंसर्न्स रही हो, लेकिन आपने क्या किया, बार बार कह करके कि ये जो तुम्हारा पहनावा है ये रियल प्रॉब्लम है, आप विक्टिमाइज हो इसकी वजह से. तो आपने क्या किया, डाइग्रेस कर दिया, उनकी अपनी सोच को आपने मिसगाइड कर दिया. शी एक्सपेक्ट दैट फॉर रीडिंग मोर यूजफुल डेटा the categories need to be more specific and considerations of other factors such as women from a particular location, class, religion or age should be taken care of. राइटर का एक सोल्यूशन, एक सुझाव है कि अगर आप वाकई में if you want to reach to certain conclusion, if you want to simply raise a question or cause of women, or if you want to give some solid solution, so first of all you need to regard all the contexts
यू टेक केयर ऑल द कॉन्टेक्स्ट, चाहे वो रेशियल हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, और जेंडर बेस्ड हो, किसी भी तरह के सारे कंसिडरेशंस को आपको जब इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक यू कैन नॉट रीच टू अ कंक्लूजन, सॉलिड कंक्लूजन। अब ये एक एक करके क्लेम्स ऑफ दिस वीमेन वेस्टर्न फेमिनिस्ट, उनका फिर जवाब, ये रियल मतलब दिस इज द रियल पोर्शन ऑफ द एसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फैन हॉस्किन, इनकी जो तो ये स्टॉप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इनके आर्गुमेंट्स क्या थे? दीज आर द आर्गुमेंट्स: the practice of African female genital mutilation is carried out with the goal to mutilate the sexual pleasure of women, to control women's sexuality and her reproductive potential. उन्होंने क्या किया, मतलब this could be the cases or the example of a few places जहां पे वीमेन जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको म्यूटिलेट करना मतलब क्या है कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको या तो सीजर करके निकलवा देना, या फिर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द रियल फंक्शन, द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। वो आपने क्या किया, उन केसेस को जनरलाइज कर दिया और फिर उसका कॉज क्या नरेट कर दिया कि मैन दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग जस्ट टू हैव अ कंट्रोल और जस्ट टू डिप्राइव सेक्सुअल प्लेजर ऑफ वीमेन। मतलब ये उनकी चाल है, मैन की चाल है कि दैट दे शुड नॉट टेक दिस प्लेजर, और दे वांट टू कंट्रोल वीमेन्स सेक्सुअलिटी। या उस एरिया के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि वी विल डिसाइड वेदर यू हैव टू रिमेन अ वुमन और नॉट, विल डिप्राइव यू ऑफ दिस फंक्शन और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब इसको क्या है, जनरलाइज करके प्रेजेंट कर दिया। और दूसरा उनका क्लेम क्या है, मेल सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन अफ्रीकन एंड अराउंड वर्ल्ड share the same political goal to assure female dependence and subservience by any and all means. दूसरी बात क्या कह दी कि ये सारा जितनी भी यहाँ पर जितनी भी इस थर्ड वर्ल्ड नेशन पर्टिकुलरली अफ्रीकन, वहां पे सारे मेल जो सारे मैन हैं उनका एक ही इरादा है और एक ही उनका ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। वो क्या है कि दे हैव टू क्रिएट द थिंग्स वेयर फीमेल और वीमेन they remain subservient, they remain at a second position, they remain only as a servant, they remain means as a dependent। ये वो चाहते हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन हो सकता है, फैक्ट नहीं हो सकता। कुछ केसेस में हो सकता है ये पॉसिबल हो, लेकिन केसेस few cases cannot be generalized। एक और क्लेम था फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, रेप, सेक्सुअल और सेक्सुअल असॉल्ट, एक्साइजन, इनफ्यूबुलेशन। इनफ्यूबुलेशन रिफर्स टू द जेनाइटल म्यूटिलेशन, जो फीमेल ऑर्गन्स उनको म्यूटिलेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, सीजर कर देना, बाहर निकाल देना। इनफिबुलेशन एटसेट्रा इज दस कैरीड विद एस्टोनिशिंग कंसेंसस अमंग मैन इन द वर्ल्ड। कि ये क्या मतलब, दिस इज नॉट डन बाय सिंगल पर्सन, दिस इज बीइंग डन बाय ऑल द मेन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। अब ये क्या है कि जनरलाइजेशन नहीं तो क्या है, मतलब हो सकता है few cases might be there, few cases some men might have deprived the women of their sexual pleasure, or they must have deprived them of the potential of reproductivity, लेकिन this could not be the case with all the women, this could not be the instance और generalized instance with all the people। अब ये काउंटर आर्गुमेंट्स है, उन सारे आर्गुमेंट्स का क्या जवाब दिया राइटर ने? पहला क्या है, कॉमन इन्फ्रेंस दैट ऑल अफ्रीकन वीमेन आर सेक्सुअली ऑप्रेस्ड इज नैरो। एक इंस्टेंस सारी वीमेन के ऊपर आप कैसे लगा सकते हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। दूसरा, इट कैन बी टू सर्टेन एक्सटेंट अग्रीड टू द पॉइंट दैट द पोटेंशियल ऑफ मेल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सर्कमसाइजेस and elucidates their social position. However, defining women as an archetypal victims freezes them into objects who defend themselves and men into subjects who perpetrate violence। ये अभी जो बात कर रहे थे कि किस तरह से, अगर आपने चलो मान भी लिया थोड़ा सा है, लेकिन अब इसको अगर आप जनरलाइज करके प्रेजेंट करते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट पिक्चर्स, पिक्चर वन पिक्चर ऑफ वीमेन एंड अदर पिक्चर ऑफ मैन। women you are trying to present women as perpetual object, continuous object of who defend themselves, means victimized। You always present them as a person who always requires defense, who always remains endangered। आपने ऐसे प्रेजेंट किया कि वो लेडी हमेशा खतरे में है। और मैन, दूसरी तरफ मैन क्या है, सब्जेक्ट हु परपेट्रेट वायलेंस। मैन देखते ही कि भाई ये आदमी खा जाएगा, ये आदमी डिस्ट्रॉय कर देगा, आदमी को देखते ही कि यू नीड टू गेट अवेयर, यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दिस पर्सन।
he is some kind of beast, and then the moment he will see you, he will pounce upon you and destroy you, kill you. तो ये एक आपने क्या इमेज प्रेजेंट कर दी, इस इमेज से सोसाइटी का क्या भला होगा? इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। और सोसाइटी को किस तरह से प्रेजेंट कर दिया आपने? सोसाइटी इंटू पावरलेस वीमेन एंड पावरफुल मैन ग्रुप्स, दो ग्रुप बना दिए, पावरलेस एंड पावरफुल। अब जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती थी, मतलब एक डिपेंडेंट कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, अब उसी तरह की सिचुएशन आपने डोमेस्टिक बना दी। मैन एंड वीमेन, men are powerful, women are powerless. Men always perpetrate, men always oppress, women are always victimized. So ये generalization से क्या आप प्रूव करना चाहते हो? Male violence must be theorized. If there is male violence, it must be theorized and interpreted within specific societies in order to understand better and effectively organize to change it. हाँ, अगर प्रॉब्लम है सो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती होगी, डेफिनेटली लोकेलिटी टू लोकेलिटी वेरी करती होगी, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करती होगी, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। यू ट्राई टू इवेलुएट ऑल द कॉन्टेक्स्ट। एक कम्युनिटी की एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप इवेलुएट करिए एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। तो आप किसी कंक्लूजन पर आइए, इट कुड बी बेटर, यू विल रीच टू बेटर रिजल्ट्स। बेवर्ली लिंडसे ने इस बुक में कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड वर्ल्ड वीमेन, आर्ग्यूमेंट्स क्या है उनके? डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन रेस, सेक्स एंड क्लास आर बीइंग परपेचुएटेड थ्रू सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये जो पूरा का पूरा फीमेल विक्टिमाइजेशन की प्रोसेस है, ये एक्चुअली एक सोची समझी चाल है। और ये कहां से? मतलब एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वहां से ये सोच समझ करके बनाया गया है, सो दैट वीमेन ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट। इकोनॉमिक प्रोसेस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है कि वीमेन डोंट हैव अ फ्रीडम टू डिसाइड इन अ फाइनेंशियल मैटर्स। ना ही फाइनेंशियल मैटर्स में उनको कोई पावर दी गई है, प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है। जितने भी इकोनॉमिकल डिसीजंस हो सकते हैं वो मेल के हाथ में रहेंगे। कुछ वो कह रहे हैं कि ऐसा करके उन्होंने क्या है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे सोशल या एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने उस बात को कह दिया है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वीमेन। दूसरी क्लेम का, थर्ड वर्ल्ड वीमेन कॉन्स्टिट्यूट एन आइडेंटिफिएबल ग्रुप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड डिपेंडेंसीज। मतलब all the women of the third world nations are same way they are dependent। मतलब all the women of the third world nation, चाहे वो एशियन हो, अफ्रीकन हो, या फिर थर्ड वर्ल्ड या फिर गल्फ कंट्रीज की हो, सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। एंड देन हु हैज मेड देम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट? men and then the social and political institutions। जितनी भी सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे कि लॉज आपने ऐसे बनाए हैं, पार्लियामेंट पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लॉज ऐसे बना दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा, या फिर उनको फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं होंगे। ये सारे वो उनको लगता है कि ऐसे बनाए हैं, और इस वजह से इस करके आपने क्या किया है, फीमेल डिपेंडेंस को इंटैक्ट रखा है। मतलब यू हैव डिवाइज्ड द थिंग सच अ वे दैट द वीमेन ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट टू मैन। और ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह, पूरे थर्ड वर्ल्ड नेशन में ये सब कुछ एक सही है। तो ये पूरे मतलब इधर के जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज या फिर ये हमारी एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज, सब में यही प्रॉब्लम होगी, सब में कहीं पे उनको वीमेन को राइट नहीं है। ये तो एक जनरलाइजेशन हुआ। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन Vietnamese and black Americans women, but both groups are victims of race, section, class। हर जगह की उन्होंने ये कर दी कि भाई यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम ये क्लेम्स है। अब इनको कैसे काउंटर किया, अटैक किया है? इफ शेयर्ड डिपेंडेंसीज वर रिक्वायर्ड टू बाइंड द women together as a group, third world women would always be seen as a apolitical group। apolitical मतलब they don't have any political say, they don't have any political existence। अगर वो हमेशा से विक्टिमाइज रही है, हमेशा से कभी भी उनको इकोनॉमिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल फ्रीडम या किस तरह की नहीं मिली है, तो फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी स्टेटस ही अपॉलिटिकल हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? अगर जहां पर भी जो डेमोक्रेसीज हैं, तो वहां पर तो दोनों की बराबर हिस्सेदारी है, बराबर भागीदारी है। वहां पर ये फिर आपका ये जनरलाइजेशन कैसे आप उसको अप्लीकेबल मानते हो? सो अगर ऐसा है
तो वीमेन को आपने क्या बना दिया, अपॉलिटिकल ग्रुप बना दिया। और ऐसा इसका मतलब क्या होगा कि अभी तक भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो अगर आपको यही लगता है कि मैन हैव ऑलवेज डिवाइज द थिंग सच ए वे दैट द वीमेन रिमेन इंडिपेंडेंट, तो मैन को भी फिर ये लगना शुरू हो जाएगा कि हमें यही व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करना है। वी डोंट हैव टू लेट देम फ्री, आगे उनको कभी फ्रीडम मिलनी नहीं चाहिए। ये तो फिर ये हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इट इज कॉमन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट क्लास, रेस, जेंडर एंड imperialist hierarchies that constitute third world women as a strategic group at this historic juncture. अब जितने भी आप स्ट्रगल्स उठाकर देखोगे, कॉमन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल आप जब देखोगे तो उसमें आप ये पाओगे कि वीमेन हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टू एनी कॉज विद मैन। आप डिवाइड करने की बात कर रहे हो, तो जब भी किसी भी तरह के जो पॉलिटिकल स्ट्रगल रहे हैं, चाहे क्लास के अगेंस्ट, रेस के अगेंस्ट, जेंडर के अगेंस्ट, या फिर इंपीरियलिस्ट हायरार्की के अगेंस्ट, तो फिर आपने क्या किया, अब इस तरह से प्रेजेंट करके उनको एक सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट, as if their role is negligible, as if their role was nowhere to be considered. तीसरी बुक का क्लेम क्या है, मारिया रोजा क्यूट्रोफेली, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, और आर्ग्यूमेंट और उसका फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट। ऑल अफ्रीकन वीमेन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, एक तो ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन। दूसरी बात, प्रोस्टिट्यूशन इज द ओनली वर्क ऑप्शन फॉर अफ्रीकन वीमेन एज ए ग्रुप। ये मतलब कितना ज्यादा जनरलाइज कर दी चीजों को कि ऑल अफ्रीकन वीमेन आर डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, वन थिंग। All the women of Africa have one option as a career, that is prostitution. How come it is possible that all of the women of Africa have the same kind of choice? None of them can have some different prospects in her life. How come it is possible? Cases of few have been generalized here. Particular cases जहां पर ये prostitution चल रहा होगा, वहां पर वो इकोनॉमिक, सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होती है। इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट सप्रेस अ वुमन टू जस्ट गो इनटू दिस प्रोफेशन। कुछ का केस इन्होंने क्या किया, इस बुक में जनरलाइज बना के प्रेजेंट कर दिया कि दिस हैपेंस विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीमेन। जितने भी अफ्रीकन वीमेन है सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सारी की सारी ये प्रोस्टिट्यूशन के उसमें है। इसका काउंटर अटैक क्या किया है, वीमेन फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कैन बी डिस्क्रिप्टिवली कैरेक्टराइज्ड एज वीमेन ऑफ अफ्रीका। ये वीमेन ऑफ अफ्रीका क्या हुआ भाई? एक तरफ तो आप कॉमन फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, उसी दूसरी तरफ क्या है कि वीमेन, ये वीमेन ऑफ अफ्रीका, ये वीमेन ऑफ इंडिया, ये वीमेन ऑफ पाकिस्तान, ये वीमेन ऑफ अफगानिस्तान, ये वीमेन ऑफ ईरान, ये वीमेन ऑफ दिस कंट्री, ये वीमेन ऑफ दैट कंट्री। वेयर हैज गॉन योर फेमिनिज्म? जहां पे अब एक तरफ कह रहे हो ऑल द वीमेन आर वन, एक तरफ दूसरी तरफ ने कह दिया कि वीमेन ऑफ दिस प्लेस, वीमेन ऑफ दैट प्लेस, और आपने उनको सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया। So African can be descriptively characterized as women of Africa. It is when women of Africa becomes a homogeneous sociological grouping characterized by common dependencies and powerlessness that problem arises. The real problem arises when you simply categorize them as women of Africa. अब women of Africa का नाम आते आपके माइंड में क्या जाता है कि all the women of Africa are victimized. All the women of Africa are economically dependent. They cannot raise their standard. If at all they want to raise something as their means career choice, so only one career is left, that is prostitution. ये तो generalization हुई। Women as are constituted as a group via dependency relationship vis-a-vis men who implicitly held responsible for these relationship. अब आपने क्या किया कि सोसाइटी में दो ही poles हैं, men and women. Women are always dependent, so who is making them dependent? Implied answer is men. अब अपने सोसाइटी के दो पोल्स क्रिएट कर दिए, दो रिफ्ट क्रिएट कर दिए कि एक डिपेंडेंट और एक जो डिपेंड करने पर मजबूर कर रहा है। एक मतलब जो मास्टर और एक सर्वेंट, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया। जो टू पोल सोसाइटी के थे उसको आपने क्या किया, मास्टर सर्वेंट में ये नरेट करके प्रेजेंट कर दिया। नाउ द मास्टर मैन थिंक्स हिमसेल्फ एज अ मास्टर एंड वुमन हरसेल्फ विल थिंक हरसेल्फ एज अ सर्वेंट। तो ये हम कौन सी सोसाइटी की तरफ लेके जाएंगे और क्या सोल्यूशन मिलेगा इसका? आपने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। और ये फिर क्या होगा कि एक टाइम में जैसे कॉलोनियल फोर्सेस में होता है कि मास्टर और सर्वेंट को लगने लगता है कि द मास्टर इज टॉर्चरिंग अस, एक्सप्लॉइटिंग अस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड नाउ इट इज टाइम वी गैदर्ड एंड देन वी अटैक्ड।
एक टाइम ऐसा आता है कि सर्वेंट को लगने लगता है कि अब भाई, अब इस मास्टर को मारने का टाइम आ गया है। तो ये अगर वो सोसाइटी को इमेजिन करिए, ऑल द वीमेन दे कलेक्ट देमसेल्व्स, दे गैदर देमसेल्व्स एंड देन दे स्टार्ट मार्च अगेंस्ट ऑल द मेन। क्या सोसाइटी होगी वो? किस तरह की सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं? When women of Africa as a group versus men of Africa as a group are seen as a group precisely because they are generally dependent and oppressed, the analysis of specific historical differences becomes impossible because reality is always apparent structurally by division to mutually exclusive and jointly exhaustive groups, the victims and the oppressor. अगर आपने ये विमेन ऑफ अफ्रीका वर्सेस मैन ऑफ अफ्रीका, इन दोनों में ये सोसाइटी क्रिएट कर दी, तो आप बिना किसी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, मतलब हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन के या फिर कॉन्टेक्चुअल इवैल्यूएशन के, उस प्रॉब्लम को और एग्रीवेट करते चले जाओगे. दिस विल simply aggravate. The problem is not going to be. Juliet Minces, the house of obedience, what she has suggested and what she has assumed. Since tribe and family are the only patriarchal social structure that a Muslim woman typically knows, the only status that she acquires in a society is that of a mother or wife or a sister. इन्होंने क्या कह दिया कि all the Muslim women, they know before they enter into the family that they are destined to be a mother, a sister, or a woman. Their fate is like this. They don't have to change this fate. And if they know that their birth is only for being a mother, only for being a sister, only for being a wife, only for being a subservient entity, they know that their status is simply servant-like. They know that their position, their role is this thing. फैमिली में उनके लिए मतलब एक ही तरह की जगह है, उनको माँ बन के, बहन बन के, पत्नी बन के ही रहना है. दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन अ फैमिली. अपार्ट फ्रॉम दिस दे डोंट हैव टू थिंक एट ऑल. ये जनरलाइजेशन उन्होंने यहाँ पे क्लेम कर दी. दूसरा क्या कहा? मुस्लिम वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव द सेम आइडेंटिकल विजन ऑफ देमसेल्व्स एंड पैट्रियार्कल फैमिली इज द बेसिस ऑफ दैट. और कह रहे कि दुनिया की सारी मुस्लिम वुमेन को यही लगता है और ऐसे ही वो रहती भी है. दुनिया की सारी, दुनिया मतलब ये थर्ड वर्ल्ड नेशंस, इन थर्ड वर्ल्ड नेशन में सारी वीमेन को ये लगता है कि देयर होल डेस्टिनी इज ओनली टू बी अ मदर, टू बी अ वाइफ, टू बी अ सिस्टर, टू बी अ सर्वेंट लाइक, मेड लाइक. कि ये अब कहां से तुमने ऐसा कौन सा सर्वे कर लिया कि जहां पे सबको पता चल गया कि सारी वीमेन, सारी मुस्लिम वीमेन है, यही चाहती है, यही अपने आप को मानती है, कोई दूसरी अपने आप को दूसरे रोल में सोचना ही नहीं चाहती. ये रोल किसने दिए है? कौन डिफाइन कर रहा है? सब जगह के लिए एक पर्सन को डिफाइन कर रहा है. तीसरा क्लेम क्या है? दिस विमेन आर सेक्सुअल पॉलिटिकल सब्जेक्ट प्रायर टू देयर एंट्री इनटू द फैमिली. मतलब फैमिली में आने से पहले ही उन्हें समझ में आ चुका होता है कि उनका रोल ये है, बजाय इसके कि फैमिली में आने के बाद में उनका रोल डिफाइन हो. फैमिली में आने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि ये उनके रोल्स हैं और दिस इज हाउ दे हैव टू बिहेव. दिस इज अ पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी फॉर देम. इसी पॉसिबिलिटी के साथ उनको आगे बढ़ना है. इनके काउंटर आर्गुमेंट्स क्या है? Mises has failed to consider the class and cultural differences that exist across these societies. She has also failed to detail the practices of family that has caused the oppression of Arab and Muslim women. ये कह देना कि सारी women को already पता होता है कि they have to become a wife or a daughter or a sister or a mother. She has failed to understand the particular differences owing to culture, differences owing to hierarchical, जो उनकी हेरिडिटी है. वो जो डिफरेंसेस उन्होंने, हो सकता है कि फैमिली सेटअप एक इस तरह से बनाया गया हो, लेकिन सारी जो जितनी भी मुस्लिम वीमेन्स हैं उनके सबके साथ यही प्रॉब्लम है. सबको ऐसे ही लगता है दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज सिंपली एन assumption. This cannot be, this could not be the reality. All women, regardless of class and cultural differences, are affected by this system. Not only are the Arab and Muslim women seen to constitute homogeneous oppressed group, but there is no discussion of the specific practices within the family which constitute women as mothers, wives, sisters, or Arab Muslims. It appears they don't change at all. ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है. This is simply baseless. ये ऐसा अज्यूम करना, ऐसा स्वीपिंग जनरलाइजेशन देना, ये सिर्फ एजम्पशन का ही हो सकता है. इसमें कोई ना तो लॉजिक है ना ही कोई सेंस है. कि जो वीमेन है उनको पहले से पता चल जाता है कि दिस इज देयर रोल. ये बिना किसी मतलब जो सर्वे, बिना किसी इंटरेक्शन, बिना किसी सॉलिड प्रूफ, बिना किसी एक सॉलिड थियरी के ये दी हुई है. सो दिस कैन नॉट बी बॉट. एक लास्ट इसमें ये है पैट्रिशिया जेफरी. इनकी इस बुक में
क्या इस्लामिक आइडियोलॉजी एक्सप्लेन्स फॉर द स्टेटस ऑफ वीमेन एंड जस्टिफाई द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा। इन्होंने लास्ट में क्या है कि इस्लामिक कोड जो शरिया दैट devises the thing such a way that women have to remain in this kind of position, and then the kind of dress they wear, जो burqa या पर्दा, that is means simply propagated by the religious practices. This is one of the religious practices. बुर्का पहनना तो एक ये जियोग्राफिकल कंडीशंस को भी डिपेंड कर सकता है, कुछ पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स भी हो सकती है, कुछ जगह हो सकता है कि वो ऑर्थोडॉक्सिकली उसको फोर्स किया जा रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा फोर्स ही किया जा रहा है। हाउ कम यू कैन नो simply seeing a woman in parda and seeing a woman in burqa or seeing a woman in that kind of veil, that kind of dress, you have assumed that the religion is the cause. ये कैसे हो सकता है? ये तो एक simply faulty assumption है, assumption भी faulty है। It is a set of ideas whose internalization of पीरज़ादा women contribute to the stability of the system. ये इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, पीरज़ादा women का एग्जाम्पल दे करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे सोसाइटी या फैमिली का सेटअप ही ऐसा है कि उन्हें ये मतलब इफ दे ट्राई टू कम आउट ऑफ द सिस्टम दे कैन नॉट, सिंस दे रिगार्ड इट टू बी गिवन बाय गॉड, सिंस दे रिगार्ड दिस एज अ डायरेक्शन गिवन बाय गॉड। उनको ये लगता है कि ये किसने कहा है? भगवान ने कहा है ऐसा करने के लिए, ऐसा पहनने के लिए। सो दे हैव एक्सेप्टेड दिस। सो दिस इज हाउ द नैरेटिव हैज बीन सेट। तो यह सब जगह ये सेम तरीके से अप्लाई करती है, तो ये एक अजम्पशन ही हो सकती है, ये रियलिटी नहीं हो सकती। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर पर्दा इज लोकेटेड इन द कंट्रोल दैट पीरज़ादा women have over economic resources and the personal security पर्दा gives to पीरज़ादा women। अगर वो करे कि भाई अगर if you cite the example of पीरज़ादा women, now you look at the context also. Looking at the context will guide you to the reality that wearing this parda, wearing this kind of dress gives them security, gives them stability. They feel like wearing this. It is not a compulsion. It is not simply orthodoxy or orthodox behavior on the part of religion or orthodox practices given by the men of the society. पर्दा से उनको ये फील होता है कि they are safe, secure. So how come you can decide? How come you can generalize the things? आपको कैसे लग गया ये? फिर ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इफ इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस तो इट कुड नॉट बी द मीन्स ऑफ विक्टिमाइजेशन। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और हो इनकी, आपने प्रॉब्लम को डाइग्रेस कर दिया, आपने प्रॉब्लम को दूसरी तरफ घुमा दिया, जो प्रॉब्लम नहीं भी थी उसको प्रॉब्लम बना करके आपने प्रेजेंट कर दिया। बाय टेकिंग ए स्पेसिफिक वर्जन ऑफ इस्लाम एज द इस्लाम, क्या किया? एक रिलीजन को द इस्लाम मतलब काइंड ऑफ रिलीजन that has a distinct kind of religious practices and then these practices are only to suppress women। आपने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया किसी भी रिलीजन को कि ये रिलीजन का एग्जिस्टेंस ही किस बेस पर है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी विमेन को दबाने के लिए है, सारी प्रैक्टिसेस विमेन को ऑप्रेस करने के लिए है। तो आपने उस रिलीजन की एक नई डेफिनेशन ही प्रेजेंट कर दी, उस रिलीजन को एक नए ढंग से ही प्रेजेंट कर दिया, जैसे कि कोई और कॉजेस न हो। रिलीजन इज द ओनली कॉज फॉर द विक्टिमाइजेशन और द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द वीमेन फॉलोइंग दैट रिलीजन। दुनिया में जितनी भी वीमेन हैं, मतलब मुस्लिम वीमेन्स, उनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ उनका रिलीजन है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। ये मतलब जनरलाइजेशन नहीं है तो क्या है? ये अजम्पशन नहीं है तो और क्या है? आइडेंटिकल सिचुएशन में सबको रख दिया विदाउट लुकिंग इनटू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जहां जहां पे मतलब यू हैड बेटर आस्क the women who are wearing veils or who are wearing burqa, whether they feel like wearing it or they are suppressed, they are forced, they are imposed, वो तब आपको पता चलता है। ये what are the benefits and what are the demerits of this kind of means veil or this kind of dress, whether this kind of dress impedes their progress, whether this kind of particular dress gives them certain kind of obstruction। ये सारी चीजें आप जब तक सारे एक एक पहलू को एड्रेस नहीं करोगे, you cannot come to a conclusion। अगर ये आपने एक सेल्फ सेम सिंगल स्टेटमेंट में ये कह दिया कि the sole cause of the women of third world nation, particularly Muslim women, is the imposition of certain practices by the religion itself, तो आपने क्या किया? उनको हिस्ट्री से अलग कर दिया। जो कंडीशंस हो सकती थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस,
जब से वो रिलीजन का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से क्या क्या डेवलपमेंट प्रोसेस में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और वो अफेक्ट हुई हैं, उन्होंने चेंजेस लाए हैं, उनको चेंज मिला है, इन सबको आपने सिरे से खारिज कर दिया। उन सब के बेस पर अगर आपने कुछ कंक्लूजन बनाया हो तो दैट कुड हैव बीन जस्टिफाइड, लेकिन आपने सिर्फ उस एक ड्रेस को देख करके सारी चीजों को एक एक तराजू से या एक डंडे से कह दिया। 5 राइटर्स की तो ये थी सारी एजम्पशंस। उसके अलावा कुछ कॉमन एजम्पशंस थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टरहुड, Western feminists assume common experiences and goals and notions of women's operation under the monolithic conspiring sort of patriarchal dominions. कॉमन सिस्टरहुड के बारे में प्रॉब्लम उन्होंने जताई है कि भाई एक तरफ तो क्या है कि यू हैव कॉल्ड दैट वीमेन आर सिस्टर इन सफरिंग, ऑल द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर सिस्टर इन सफरिंग, और उस तरीके से आपने की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को नहीं देखा। जो कुछ विमेन की या फिर जो आपकी खुद की जो प्रॉब्लम्स थी उनको आपने जनरलाइज करके या फिर आइडेंटिकल बना करके प्रेजेंट कर दिया और ये कह दिया कि योर प्रॉब्लम इज दिस एंड दिस कुड बी द सॉल्यूशन। इफ यू रिगार्ड योरसेल्फ एज सिस्टर्स इन सफरिंग, यू हैव रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू यू, you have suggested some solution worked and now you are liberated। उन सोल्यूशन का वो कामयाब भी हो गया सोल्यूशन, और अब आप फ्री भी हो, एजुकेटेड भी हो, कल्चर्ड भी हो, रिफाइंड भी हो। ऑन द अदर हैंड सेम सोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई किए होंगे। उन सेम सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद में इनकी स्टेट, वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन, इनकी स्टेट अभी भी कैसी रही? वही विक्टिमाइज्ड रही, वही सप्रेस्ड रही, वही अनकल्चर्ड और वही डिपेंडेंट, वही एक सब्जेक्ट टू नो चेंज, यही रही। तो फिर इसका मतलब मेथोडोलॉजी या फिर जो सोल्यूशन गिविंग प्रैक्टिसेस उनमें फॉल्ट था, या फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टरहुड उसी में फॉल्ट था। शी बिलीव्स दैट द आइडिया ऑफ सॉलिडेरिटी इंस्टेड ऑफ सिस्टरहुड, मतलब कि आपने सॉलिडेरिटी के आइडिया को प्रोपेगेट करना चाहिए था रादर देन सिस्टरहुड, क्योंकि सिस्टरहुड में आपने सारी विमेन को एक समान दिया विदाउट लुकिंग इनटू द रियल प्रॉब्लम्स दे रियली फेस। She says sisterhood cannot be assumed on the basis of gender. It must be forced into concrete historical and political practice and analysis. If you really regard all the women of the world sisters, it should not be based on the gender. कि जो women हैं वो हमारी सब sisters in suffering हैं। रादर आपको अगर देखनी है वाकई में तो उन सारी वीमेन को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न देख करके, जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से न देख करके, उनकी जो जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, उनको अगर आप टारगेट करोगे सो यू कैन रीच टू अ बेटर कंक्लूजन। वो और जो सिस्टरहुड कॉन्सेप्ट आपका रियलाइज हो सकता है। यू कैन बेनिफिट दो सिस्टर्स, सो कॉल्ड सिस्टर्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अगर आपने सिर्फ सिस्टर्स ये समझ लिया कि ये जितनी वीमेन है, ऑल द फीमेल्स आर सिस्टर जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल, so this is not how you can raise the standard of these women. She tries to expose the space between the third world women as a representation versus the real life third world women। और कि तुमने क्या किया है, एक जो प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और द रियलिटी, उसमें रिफ्ट पैदा कर दिया। The women of third world nations are different and then you have presented them entirely different। उनकी रियल पिक्चर को तो आपने शो ही नहीं किया, रियल स्टेट को तो आपने, स्टेटस को तो प्रेजेंट ही नहीं किया, रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तो आपने बताया ही नहीं। आपने जो आपको लगा, जो आपने सोचा, उसको फाइनल मान करके आपने प्रोपेगेट कर दिया। सेकुलराइजेशन में हैव प्लेड अ पिवोटल रोल इन द बिकमिंग ऑफ वाइट वेस्टर्न फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, बट दिस मे सर्टेनली नॉट बी फॉर वीमेन ग्लोबली। ये जो सेकुलराइजेशन, मतलब यू हैव सेकुलराइज्ड योरसेल्फ, कुछ सोल्यूशन जो आपने अपने लिए सोचे होंगे वो हो सकता है कि वहां की कंडीशन को सूट करते हो। सेम काइंड ऑफ सोल्यूशंस कैन नॉट बी गिवन टू ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु बिलोंग टू डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट कंडीशंस, चाहे वो एथनिक हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो आप सेम तरह के सॉल्यूशन कैसे आप एक जगह से दे सकते हो? Women as sisters in struggle is a sociological understanding of the sameness in withstanding oppression regardless of class, culture and geographical borders. It is imperative to be mindful of the hegemony of the Western scholarly establishment when producing and disseminating texts that emphasize monolithic terms such as third world women. अब ये कह रहे हैं कि now it is time we considered the politics behind the creation of these texts।
तो ये जो टेक्स्ट क्रिएट किए गए थे, जिन टेक्स्ट की अभी बात चल रही थी, उन टेक्स्ट को क्रिएट करने के पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़ी चाल है। वो ये है कि इन सारी थर्ड वर्ल्ड नेशन की वीमेन को हमेशा विक्टिमाइज्ड ही बने रहने दो। विक्टिमाइज बनी रहेंगी और इनको जब एहसास होगा तो दे विल सर्टेनली कम अगेंस्ट द ऑपोजिट जेंडर, क्योंकि आप जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और उनके माइंड में ये भरा जा रहा है कि योर ओनली प्रॉब्लम इज दिस ऑपोजिट जेंडर, मैन इज योर सोल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो फिर आप क्या कर रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो आगे ऐसी सोसाइटी के लिए जहां पर पावरलेस और पावरफुल, सर्वेंट और मास्टर, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप जानबूझ करके क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये उसी तरह की हो जाएगी जैसे कॉलोनियल फोर्सेस के टाइम पे था, मास्टर एंड कॉलोनाइज्ड एंड द कॉलोनाइजर। यहाँ पर भी आप क्या है, लोकल कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड की अपने एक इमेज बना कर रखते। जितने भी टेक्स्ट हैं अभी तक जो फेमिनिस्ट विमेन या वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने जो टेक्स्ट लिखे हैं, उनको रिव्यू करने की जरूरत है, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और फिर एड्रेस जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है कि दिस is where you remain faulty. This is where you could not truly represent the cause of women of third world nation. यहां पे आपने मिस कर दिया। एक तरफ आपने अपने को फेमिनिस्ट कहते हो और वो ग्लोबल फेमिनिस्ट, दूसरी तरफ बात थोड़ी सी सिलेक्टिव करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न फेमिनिस्ट कैन नॉट escape implication of these global economic and political frameworks and must be carefully not to replicate unequal power relation between the first world and third world. Development is synonymous with economic development or economic progress. Women are affected positively or negatively by the economic development policies, and this is the basis for cross-cultural comparison. A more developed country has fewer oppressed women. ये इनके assumptions हैं। More developed country, more developed society, less oppressed women. यानी कि development, economical development का ना होना women के ऑपरेशन के, विक्टिमाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ये उन्होंने अज्यूम करके और प्रोपेगेट कर दिया थर्ड वर्ल्ड नेशन की वीमेन के लिए। Problems and needs expressed by rural and urban women in third world nations are all centered around the education and training, work and wages, access to health and other services, political participation and legal rights. Husband relates all these needs to the lack of sensitive development policies which exclude women as a group or category. यानी कि आपने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स थी, रियल कैटेगरी जो थी, उनको आपने इग्नोर कर दिया। Husband assumes that all third world women have similar problems and needs, thus they must have similar interests and goals. You have categorized all the women of third world nation to have the similar needs and similar problems, and as such a similar solution can be given, which is wrong. फिर interest of urban and middle class educated Egyptian housewives, to take only one instance, could surely not be seen as being the same as those of uneducated poor maids. अब आपने क्या किया कि डेवलपमेंट रूरल एरिया में, डेवलपमेंट अर्बन एरिया में, अगर डेवलपमेंट हो भी गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो भी गया, सो वुड इट बी सोसाइटी एट पार? क्या मेड का अगर स्टैंडर्ड कितना हाई कर दोगे और एक मास्टर का या फिर जो एक इलीट क्लास है उसका स्टैंडर्ड कितना हाई कर दोगे? दोनों के स्टैंडर्ड हाई हो भी गए, फिर भी क्या वो एक उस पर आ पाएंगी? कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हो? एक मेड सर्वेंट, उसका स्टैंडर्ड कितना हाई होना चाहिए कि वो एक डेवलप कैटेगरी में आए? और जो इलीट क्लास से बिलोंग करती है उसका किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए जो वो एक फ्री मानी जाए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मानी जाए? तो फिर इन दोनों को आपस में आप कंपैरिजन करोगे तो फिर क्या एक हो जाएंगी? सर्वेंट और द मेड कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू द वुमन ऑफ इलीट क्लास। दोनों आपस में एक बराबर प्लेन पे आ सकते हैं, फिर भी वो इलीट क्लास ही रहेगी और ये फिर भी ये सर्वेंट क्लास ही रहेगी। तो इक्वालिटी फिर भी कहाँ रही? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में भी इक्वालिटी तो नहीं आ पाई ना। फिर ये गारंटी कैसे देगा कि वीमेन बिलोंगिंग टू दिस मेड सर्वेंट और दिस पुअर क्लास विल बी means free from all sorts of problems that can be caused in the society in between? तो वो कहां से गारंटी आप कर सकते हो उसको? डेवलपमेंट पॉलिसीज डू नॉट अफेक्ट बोथ ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन द सेम वे। तो इसका मतलब डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है वो सारे ग्रुप, क्योंकि ग्रुप वाइज अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि सारी जो वीमेन है सबका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ा दो, इसको एक साथ कैसे आ पाएगी?
There is no society where we can imagine the means economic development or economic disparity to be removed. ऐसी कोई society नहीं होती. Economical disparity will remain always. Women are constituted as women through the complex interaction between class, culture, religion, and other ideological institutions and frameworks. They are not women a coherent group solely on the basis of particular economic system or policy. तो सिर्फ एक पॉलिसी के बेस पर उन सारी विमेन को एक फ्रेमवर्क में ला देना, एक ग्रुप में क्रिएट कर देना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. सारी थियरीज उन्होंने इवेलुएट की हैं, उन सारी थियरीज में शी हैज फाउंड सम फॉल्ट्स. एक अर्थमेटिक मेथड जो इन्होंने फॉल्टी मेथड की तरह प्रेजेंट किया है कि ये मेथड जो है आपको विमेन की स्टेट को प्रेजेंट करने का, ये दिस इज फॉल्टी. द ग्रेटर द नंबर ऑफ विमेन हु वेयर द वेल द मोर यूनिवर्सल द सेक्सुअल सेग्रीगेशन एंड कंट्रोल ऑफ विमेन. आपने एक अर्थमेटिक तरीका ये कर दिया कि जितनी विमेन जो बुर्का पहनती हैं या जो इस तरह का वेल घूंघट में रहती हैं, उनके साथ एक ही तरह का सेक्सुअल जो ऑपरेशन फेस किया जाता है. They all face the same kind of sexual operation. They all face victimization. They are victimized. सारी बुर्का पहनने वाली औरतों के साथ एक ही तरह का न्याय होता है और they remain in that victimization or victimized state. ये अर्थमेटिक तरीका, इससे आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप नहीं ला सकते. Muslim women in Saudi Arabia, Iran, Pakistan, India, Egyptian all wear sort of veil. Hence, this indicates that the sexual control of women is a universal fact in those countries in which women are veiled. इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ की इन कंट्रीज की सारी women की प्रॉब्लम एक है. अगर आप पर्टिकुलर कंट्रीज में जाओगे, वहां की जो women से बात करोगे, इनके प्रॉब्लम्स की बात करोगे, so you will get to know that they have different needs and different requirements, different problems. But you have simply said that all the women who happen to wear a veil have the same kind of problem. This is not very right. Parda acts as a sexual control. So parda does not act as a sexual control. In some cases it might be. In some cases it could work as a sexual control, but not universally. इनके काउंटर अटैक्स जो इन्होंने किए हैं वही है. Sexual control cannot be function as a primary explanation of the parda. Parda cannot be the explanation, the only explanation of sexual control. सिर्फ ड्रेस कोड बना करके आप ये नहीं कह सकते कि all the women of Islamic origin are victimized just because they wear a veil. What about other women who don't wear a veil and still are victimized? बाकी जहां पर ये बुर्का नहीं पहनती है लेडीज, क्या वो सब सुखी हैं? सब अपने मतलब सॉलिड स्टेट में है? जिसने बुर्का पहन लिया वो विक्टिमाइज्ड हो गई. तो ये तो एक this is not based on some facts. This can be assumption through the descriptive generalization. डिस्क्राइब कर दिया आपने, एक तरह की चीज को डिस्क्राइब कर दिया और फिर जनरलाइज कर दी. Institutions of Parda are the denied any cultural and historical specificity and contradiction and potentiality subversive aspects are totally ruled out. तो इनके पीछे की कहानी आपने देखी नहीं, इनके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने चेक ही नहीं की, एथनिक कॉन्सेप्ट आपने देखा ही नहीं. कुछ हो सकता है जियोग्राफिकल कंडीशंस रही हो कहीं पे, वहां पे पर्दा उन्होंने पहनना शुरू किया हो या वेल अपना पहनना शुरू किया हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस रही हो, वहां पे ये लोग पहनते हो. It is not always that some religion has imposed this dress code and then they are simply wearing, and then this is how their sexuality is being controlled. This is how their state as a woman is controlled. ये तो एक सही explanation नहीं हुई. While there may be physical similarity in the veils worn by women in Saudi Arabia and Iran, and the scientific meaning attached to this practice varies according to the cultural and ideological context. Example दिया यहाँ पर. For example, Iranian middle class women veiled themselves during 1979 revolution to indicate solidarity with their veiled working class sisters. While in contemporary Iran, mandatory Islamic laws dictate all Iranian women wear veils. एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया. दो तरह की ईरान में दो तरह की प्रॉब्लम्स, दो तरह का रिस्पॉन्स. एक तो 1979 रेवोल्यूशन में जो वर्किंग क्लास वीमेन थी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. दे वोर वेल, पर्दा बुर्का पहनती थी. तो जो बाकी सारी लेडीज ने, जो एलीट क्लास वीमेन ने या बाकी जितनी भी नॉन वर्किंग क्लास जो वीमेन थी, उन्होंने उसको बुर्का पहनना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके साथ सपोर्ट, एक सॉलिडेरिटी प्रेजेंट की जाए. तो वहां पे तो कोई ना तो रिलीजन ने कहा उनको पहनने के लिए, ना ही किसी डिक्टेटर ने कहा.
पहनने के लिए, ना ही किसी मैन मेड इंस्टीट्यूशन ने कुछ कहा, उन्होंने खुद पहना, ताकि वो जो सिस्टर्स थी उनकी, या फिर जो वर्किंग क्लास वीमेन थी, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उसके साथ वो सपोर्ट, एक जेस्चर था सपोर्ट का। एक केस वो था। एक दूसरा केस था उसी ईरान में, फिर क्या हुआ कि जो डिक्टेटोरियल जो फोर्सेस आई, उन्होंने वीमेन के लिए वो बुर्का कंपलसरी कर दिया। तो दोनों के केस आप एक कैसे हो सकते हैं? एक जगह फोर्स हुई, एक जगह आपकी बात सही हो रही है कि वो एक सेक्सुअल कंट्रोल या फिर वो इम्पोजिशन है, लेकिन दूसरी तरफ तो वो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से पहन रही है। तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफर, कॉन्टेक्स्ट में डिफर, आप कॉन्टेक्स्ट लेकर के बात करोगे तो यू कैन रीच टू अ डेफिनेट कंक्लूजन। एक रहा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये जानबूझकर के ऐसी सिस्टम बनाया गया है कि औरतों के लिए कुछ और डिफरेंट काइंड का वर्क और मैन के लिए कुछ डिफरेंट काइंड का वर्क, और ये इसलिए बनाया गया, इंटैक्ट रखा गया है कि ये विमेन रिमेन ऑन अ सर्वेंट स्टेटस और मैन रिमेन ऑन अ मास्टर स्टेटस। कि ये जेंडर बेस्ड जो लेबर डिवीजन है, ये कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा रहा हो, या फिर कुछ टाइम टू टाइम वेरी करता हो, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता हो। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं दिस हैज बीन मेड बाय मैन, दिस हैज बीन दिस सिस्टम हैज बीन डिवाइस्ड बाय मैन इन ऑर्डर टू लेट द अदर क्लास, मतलब विमेन क्लास, रिमेन ऑन ए सर्वेंट पोजिशन। तो सर्वेंट की तरह रहे, तो हमेशा यही, इट इज नॉट द ओनली थिंग, ओनली सजेशन और ओनली वैलिड assumption. So concepts such as reproduction, the sexual division of labor, the family marriage, household patriarchy are responsible for women's subordination. ये एक wrong practice है. The existence of sexual division of labor is a proof of oppression women in various societies. ये assumptions, these are assumptions. उनका जवाब क्या दिया इन्होंने? The assigning of tasks on the basis of sex has an ideological origin. ये डिपेंड करता है कि कहाँ की आइडियोलॉजी, किस सोसाइटी की, किस कम्युनिटी की, किस जगह की जो कंडीशंस हैं वो कैसे सपोर्ट करती हैं विमेन के वर्क को या फिर मैन के वर्क को, या किस किस तरह के वर्क को आप किस किस क्लास से करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप उसको सिर्फ ये कह दो कि ये प्रेशराइज करके, इंपोज करके कहा जा रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। Concept of the sexual division of labor is a descriptive category which indicates the differential values placed on men's work versus women's work. अब ये भी कहकर के आप क्या कर रहे हो, दो तरह की सोसाइटी में डिवाइड कर दे रहे हो, मेंस वर्क वर्सेस वुमेन्स वर्क। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को अपने डिवाइड कर दे। Superficially, similar situation may have radically different historical specific explanations and cannot be treated as identical. For instance, the rise of female-headed households in middle-class America might be constituted as a sign of great independence and feminist progress. Female-headed households in Latin America can be seen to have more decision-making power, is concentrated among the poorest strata where life choices are most constrained economically. अब लेबर के मतलब जो जेंडर बेस्ड लेबर या जेंडर बेस्ड टास्क को आप डिफाइन करके कैसे कह सकते हो, जैसे कि वहां पे अमेरिका, वहां पे कह दिया कि भी जो विमेन हैं दे आर मींस दे हैव बीन गिवन द फैमिली हेड पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, द अ वुमन इज हेडिंग द सोसाइटी और हेडिंग द फैमिली, मतलब मेट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका में भी मेट्रियार्की है, लेकिन एक जगह डेवलप्ड है, एक जगह अंडर डेवलप्ड है। मेट्रियार्की होने के बावजूद भी दोनों जगह की लेडीज का जो वो स्टेटस है वो सेम नहीं है। तो सिर्फ ऑन द वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली डज नॉट गारंटी द फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सिर्फ फैमिली को हेड करना ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये पॉलिटिकल पोजीशन ये सुनने में, कहने में हो सकता है कि आपको लगे कि यू आर द हेड, बट हेड हैज आल्सो मेनी प्रॉब्लम्स। सिर्फ हेड होने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, फैमिली को हेड करने से और या लीड करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों की सिचुएशन सेम होती, वहां पे वो फ्री है, वहां पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं। सो ये प्रॉब्लम एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं। जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉन किए हैं वो कंक्लूजन कैसे हैं कि दे हैव नॉट बीन डिवाइज्ड ऑन सम कॉन्क्रीट फैक्ट्स, सर्वे और टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंडीशंस इनटू कंसिडरेशन। सारी कंडीशंस को ध्यान में रख करके ही डिवाइस किए, ऐसा कुछ है नहीं। वो अज्यूम्ड बेस्ड है,
सारे फॉल्टी कंक्लूजन्स हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। और उनको ध्यान में रखते हुए सारी जो जितने भी फेमिनिस्ट डिस्कोर्सेज हैं उनको रिव्यू करा जाना चाहिए। जितनी भी फेमिनिस्ट आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, जिनमें कि थर्ड वर्ल्ड नेशन की वीमेन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये किया गया है। ये फॉल्टी कंक्लूजन्स की यहाँ पे बात इन्होंने की। ऐसी ग्लोबलाइजेशन ऑफ फेमिनिज्म, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फेमिनिज्म आपने करके क्या किया कि सारी दुनिया की सारी वीमेन का एक ही प्रॉब्लम है और एक ही तरह का सोल्यूशन है। इस तरीके से आपने सबको एक ही कैटेगरी में रख करके उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को ओवरलुक कर दिया, उनकी जो कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरलुक कर दिया। ये दोबारा से मतलब फेमिनिज्म की डेफिनेशन को दोबारा से रीडायरेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। और ये एक मैकेनिज्म है, दिस इज हाउ थर्ड वर्ल्ड वीमेन हैव बीन कैटेगराइज्ड, द थर्ड वर्ल्ड वीमेन। ये एक सोची समझी एक साजिश, एक चाल है कि किस तरीके से ये रिफ्ट, ये कैटेगरी बनाए रखो। वी विल रिमेन ऑन ए ड्राइवर सीट, वी विल रिमेन ऑन अ मास्टर्स सीट, मतलब हम कैसे रहेंगे जैसे कि मालिक की, हम कैसे रहेंगे जैसे कि एक ऑक्सीडेंटल वर्सेस ओरिएंटल, वही सिस्टम आ जाएगा, कॉलोनाइज्ड वर्सेस कॉलोनाइजर। हम किस में रहेंगे, एक रिफाइंड एरिस्टोक्रेट इलीट और कल्चर्ड एजुकेटेड फ्री एक्सेसिबल टू आवर बॉडी, एक्सेसिबल टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। और ये कैसे रहेंगे, दे आर ऑलवेज इन द वांट ऑफ सम काइंड ऑफ salvation, they are always in a want or in a desire of some kind of freedom from all the oppression, they will always remain as a victimized, they will always remain uncultured, unpolished। तो वो जो दो तरह की विमेन में ये रिफ्ट बना ही रहे, ताकि हम हमेशा सुपीरियर साबित रहे और ये इंफीरियर ही साबित रहे। तो इस तरीके से वो जो ग्रुप करना, थर्ड वर्ल्ड विमेन को एक ग्रुप में रखना, वो एक पॉलिटिकल मूव ज्यादा है जिसको कि रीडिफाइन करने की जरूरत है। लास्ट में फिर शी आस्क हाउ इट इज पॉसिबल टू जनरलाइज एंड रिफर टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन द वर्क बीइंग डिवाइडेड इज डिफरेंट फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू द नेक्स्ट एंड फ्रॉम वन हिस्टोरिकल मोमेंट टू द नेक्स्ट। शी agrees with the Western feminists that the fact of sexual division of the labor is noteworthy, but the fact is different from meaning or value that the labor represents in different context। So ये बात मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ये राइटर हैज गॉन अगेंस्ट ऑल दिस वीमेन, ऑल दिस फेमिनिस्ट, वेस्टर्न फेमिनिस्ट, बात है ठीक। और ये केसेस भी हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने उठाई हैं, जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं विमेन को लेकर के, दे आर वैलिड, बट दे आर वैलिड इन पर्टिकुलर सिचुएशन, दे आर वैलिड इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। कॉलिंग और डिफाइनिंग ऑल द women having the same kind of problem, defining women or just providing a solution to all the women similar kind of solution cannot be the result, cannot be a solution। इस तरीके से आप उस तरीके वो जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तभी रियलाइज होगा व्हेन यू आर एबल टू फ्री ऑल द women from all sorts of problems they commonly have। तो जब आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट करोगे, पर्टिकुलर लोकेलिटी की विमेन की, पर्टिकुलर प्लेस की विमेन की, तब आप शायद सही डायरेक्शन में उस फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सकोगे। ये उसकी एक कंसर्न रही है। विद दिस कंसर्न शी हैज मींस क्रिएटेड दिस ऐसे और शी हैज रेज्ड दिस कंसर्न, ताकि वो सारे डिस्कोर्सेस को रीडिफाइन और रीइवैल्यूएट किया जाए, उसको दोबारा से पढ़ा जाए, ताकि ये फेमिनिज्म का एक जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है फेमिनिज्म, वो एक सही डायरेक्शन में आए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से दो तरह की फिर सिचुएशन बन जाए, कॉलोनाइज्ड वर्सेस कॉलोनाइजर। वो चाहे एक आइडियोलॉजिकल ही कॉलोनाइजेशन ही होगा, अब पॉलिटिकल तो नहीं होगा, वो आइडियोलॉजिकल ही होगा। फिर भी वीमेन ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन विल रिमेन oppressed, victimized, and the women of Western countries will remain on a driver's seat. This is not what feminism expects. Feminism, एक global अगर feminism की बात करते हैं तो all the women should have the same kind of status, or all the women should be free from all the situation, all the problems they are facing. तो problems के निवारण की बात है, ना कि उनको इस तरीके से डिवाइड करने में, उसी सोसाइटी में, उसी फैमिली में उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा करने की। दिस इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो ये आपका पूरा एक ऐसे था।